Okay, this is a session that we have been planning for long, and the only thing is that the one is circumstances and the other one is the kind of workload that I have this time. You people do know about the fact that we are going through a transition in the policy, and there are certain papers that are going to be discontinued, so the workload. Okay. Putting that aside, let me just talk about the fact that we have time. We have got October, and we need to make the most use of it. I've seen your CVs. मैंने आप लोगों की CVs देखी हैं. आप लोगों ने ज़्यादातर बच्चों ने you have forwarded your CVs to me, and I did get a chance to go through them, and I think that everybody is right on track. कुछ students के head थे problem, वो मैंने ठीक किए हैं. लेकिन आज के session में there are two main things that I want to talk about. One is that we'll just go through quickly through the cover letter, through the CV, the requirements. If you've done all of that, great. If you've not, then you just need to take the hint. You just need to take the idea and then incorporate that in your CV. Another thing that we are going to be looking at, if you just look at what I've written over here, I want you to look at the do's and don'ts about the CV, then whether writing a cover letter is important. If it is, what kind of a cover letter to write, how customized should it be? Should it be generic? Should it be customized? We are going to be talking about test preparation, especially for the KPMG test and the PwC test that would be coming up. इतनी जल्दी बेटा सारी चीजें स्टार्ट होंगी जैसे ही आपके रिजल्ट्स आएंगे कि you won't have any time to breathe, and उस वक्त अगर आप सोचे हुए हैं कि once the results are out then we are going to get really prepared, तो फिर that's going to be really late. ठीक है? So I would advise everybody to make the most of October and try to do all of the material within October. For example, preparing your CVs, preparing your tests, and then again preparing for your interviews. Although I've written over here, this is the first session, I intend to conduct not only online session, but also a physical session. I would also be bringing in some of the panelists. I wanted them to come in physically so that you can interact with them as well. So inshallah, that would be also on the cards. And as far as the online sessions are concerned, beta, because I have even on Sunday I had classes till 7:30. So I'm finding it difficult to take out time. So I'm planning on physical sessions, and I'm also planning on online sessions as well. I just need you to be there so that whatever help I can give you, you are able to get the most of it and make the most of it. Okay, beta. Now let's start. I think we have students coming in, and they will be coming in as they get to know. Okay, I'll be calling in some of my alumni PPE from TSA who I have now, mashallah, let's say in the last attempt, in the last session of the induction, they joined in the three different firms, and they've done a great job as far as their preparation was concerned, how well they did their interviews. So I'm going to get them to interact with you, and you can ask them questions. They'll be sharing some of their particular points as well. Okay, can we begin? And I'll take your questions as well, beta. आपके जो भी questions है ना, फाइज पूछ रहे हैं when will these interview sessions be conducted? देखिए मॉक का जो इंटरव्यू होता है फाइज, that takes place immediately after your results, because mock interviews are for students who have cleared the papers, because only then again they're going in for their finals, यानी कि अगर उनके finals clear हो गए, they're going in for their induction, और उसी वक्त ही फिर हम उनको एक दफा ये पैनल इंटरव्यूज के थ्रू मॉक सेशन देते हैं. ठीक है, तो फाइनल मॉक सेशन तो वो है. मैं जो ये प्रैक्टिस का करवा रही हूँ, क्योंकि मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, कुछ मटेरियल भी शेयर करूंगी इंटरव्यूज के लिए, तो वो सवाल आपने प्रिपेयर करने हैं, उसके जवाब, एंड देन अगेन अगर आप चाह रहे हैं कि एक और सेशन हो जिसमें हमें इंटरव्यूज के बारे में और पता चले कि क्या सवाल का क्या जवाब ज़्यादा बनता है और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, तो वो सेशन जो है वो मैं फिजिकली रखना चाह रही हूँ. ठीक है, लेट्स होप इट वर्क्स. एंड मॉक का तो इंशाल्लाह है, मगर वो इमीडिएटली
रिजल्ट आपका जिस दिन आएगा मैं सोचूं उसके 1 या 2 दिन के बाद मैं फौरन ही रख लूं, ठीक है। तो आप लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड भी रहें और आपको पता भी होना चाहिए कि आपके क्योंकि बेटा अगर हम बहुत लेट कर देंगे ना तो वहां से KPMG और ये सब अपने इंटरव्यूज और टेस्ट शुरू कर देते हैं, फिर बच्चा मॉक इंटरव्यूज के लिए नहीं आ पाता या उसको प्रॉब्लम होती है कि मिस अब मैं उधर जाऊं या इधर जाऊं, ठीक है। और कोई सवाल? अच्छा, मैं आप लोगों के सबके सवाल लूंगी एज वी मूव ऑन, ठीक है। बट अभी जो है हम जरा क्विकली कुछ चीजों को गो थ्रू कर लें दिस सो दैट वी कैन गेट द स्टूडेंट्स टू कम इन। आई डोंट वांट अ वेरी लॉन्ग सेशन बिकॉज अगेन दिस नॉट द आइडिया, बट ये कि फ्रूटफुल होना चाहिए सेशन आपके लिए। अच्छा देखो, सीवी गाइडलाइंस में व्हाट आर वी लुकिंग एट इज रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीवी बनता है, ये सबको पता है, ये मैं करवा भी चुकी हूँ आपको BWCS में। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि आपका लास्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट आती है, आपकी लास्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट आता है, ठीक है। अच्छा, FTS जरूर हेडर में क्लियरली लिखिए, CRN क्लियरली लिखिए, इट शुड बी विजिबल, ठीक है। एंड फोटो जो है वो कंपल्सरी नहीं है। If you want to put in a photo there, or a photograph over there, please make it professional. आप different उससे background से अगर वो photograph ले रहे हैं where somewhere you're laughing or it looks like a social event and from where you got the photograph and you have cropped it up, that is not professional. Please don't put it up. It will not add value to your particular CV. तो उसको that's a big no, ठीक है। Contact details में LinkedIn अपना वो जरूर डालिए, a link, and we are going to talk a little bit about LinkedIn as well. अच्छा, फिर आपने प्रोफाइल समरी लिखनी है, प्लीज डोंट राइट ऑब्जेक्टिव। ये मैंने बहुत सारे बच्चों का क्लियर किया है, प्रोफाइल समरी में क्या होती है, किस तरह से लिखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऑलरेडी मैंने देखी है। बहुत जेनरिक प्रोफाइल समरी मत लिखें, बहुत सुपरलेटिव्स ऐड मत करें। आपको पता है जब आप सुपरलेटिव्स ऐड करते हैं, हाईली मोटिवेटेड, हाईली कमिटेड, तो दे आर गोइंग टू आस्क यू these questions as in, you know, why are you using superlatives, and it comes across as a little fake. So try and normalize it when you're writing out your profile summary, ठीक है। उसको बहुत bombastic और flamboyant नहीं बनाओ, मतलब realistic बनाओ, simple बनाओ, ठीक है। कस्टमाइज जरूर करो, थोड़ा बहुत अपना भी ऐड करो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग द पर्टिकुलर प्रोफाइल समरी आउट देयर। A lot of students have written education only and उसी में उन्होंने सारी चीजें डाल दी हैं। बेहतर तरीका ये होता है कि यू गो फॉर अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लास्ट जो आप कर रहे हैं वो आपका ADC है और आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका कैफ है, तो आप उस हिसाब से इसको लिंक अप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर सर्टिफिकेशंस में जरूर लिखिए अपना PPE और अपने HOC की, और दैट इज अ ICAP सर्टिफिकेशन। बेटा ये सर्टिफिकेशन इसलिए हाइट करने वाली है और करनी चाहिए बिकॉज ये आपकी इंटर्नशिप के लिए एक प्री रिक्विजिट फैक्टर है। सो इफ यू डोंट मेंशन, आप जरूर बताना चाहे आप TSA से करें बिल्कुल बताइए, बट ऑल्सो राइट ICAP ओवर देयर सो दैट दे नो कि दिस इज द सर्टिफिकेशन दैट यू ऑलरेडी हैव, ठीक है। सर्टिफिकेशन के साथ मुझे एक बात और याद आई और मैं क्लियर कर दूं हर बच्चे के लिए जो इस वक्त इधर है मेरे पास इस ग्रुप के अंदर और इस वक्त इस क्लास के अंदर। बेटा देखो, हम आपको ना सर्टिफिकेशन आपकी बिल्कुल आ गई है। आपने अगर सारे वो PPE के प्रोग्राम में हर चीज को कवर कर लिया है तो यू आर इन फॉर द सर्टिफिकेशन, आपको बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन आप अपना मॉक इंटरव्यू अगर देना चाह रहे हैं तो मॉक इंटरव्यू देने के फौरन बाद आप अपनी सर्टिफिकेशन हमसे ले लीजिएगा। आपकी फर्म जो है वो अराउंड 1 मंथ का टाइम देती है, 15 days to 1 month कि आप सबमिट करवा दें, ठीक है। कभी कभार कम टाइम भी देती है, लेकिन अब वो कोई इशू नहीं है, उस वक्त तक तो बिल्कुल आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। सिर्फ एक छोटी सी वो ये है कि एक टेक्निकल बात ये है कि इफ यू आर इन द प्रोग्राम देन द सर्टिफिकेशन वुड बी गिवन एज द once the program has been completed with you, and if the mock interview is a part of the program itself, then we can't just hand over the certification because it does not make sense then. So you won't be able to come in for the mock interview. So anyone who's approaching me, I'm just telling them to hold on. Let me complete the sessions of the mock interview and then you can pick up your certification. We have no issues. ठीक है बेटा, ये बात हमारी क्लियर होगी सबकी। अच्छा, फिर प्रोफेशनल स्किल्स आपने डालनी है। प्रोफेशनल स्किल्स में आप बहुत सारे बच्चों ने सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स की उसको वो किया है, बाइफिकेट किया, दैट्स ओके।
उसमें कोई मसला नहीं है, मगर ये कि ज़रूर डालिए IT स्किल्स में से कुछ ज़रूर डालिए। आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग की हुई है, आपने एडवांस एक्सेल किया हुआ है, वो ज़रूर बताइए। और आप इसके अलावा बेटा, और फिर दूसरी बड़ी बात कि स्टूडेंट्स आर राइटिंग around 6 to 10 skills, which I don't think is very sensible. Just go for 4 specific skills that you want to tell them that you have: problem solving, decision making. और ये भी वो skills होती है, leadership skills, but they have to be skills that you have an example on. सबके लिए एक example अपने जहन में रखिएगा, your personal example of how you have used the skill and how you can demonstrate that you have the skill, because your interviewer is going to ask you about every skill that you have on your particular CV. तो वो जरूर पूछना चाहेगा कि ये जो आप कह रहे हैं, तो ये कहाँ है स्किल आपके पास, how have you used it, how has it proved added value to your particular work. So you have to have a particular link up to it, यानी कि आपके पास कोई वाकया, कोई ऐसा लिंक होना चाहिए जिसके ऊपर आप इलेबोरेट कर सकें कि जी सर, ये मैंने यहाँ पे एग्जिबिट की थी, इस तरह से डिस्प्ले की थी, या मेरी ये स्किल मुझे इस तरह से मेरे काम में ऐड वैल्यू करती है। अभी गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए प्रोफेशनल स्किल्स की जहां तक बात है ना, प्लीज डू टू सी टू इट कि आप वो स्किल्स लिखें जिसके बारे में आप भी जानते हो और आपको लगे कि मैं इसके ऊपर बोल सकता हूँ। अचीवमेंट्स और रिवॉर्ड्स में आपके यू कैन ब्रिंग इन अचीवमेंट्स दैट हैव बीन आइदर आपके स्कूल के या आपके कॉलेज के, बट see to it that they are adding value to your CV. If they're not, then it's of no use putting them there. For example, if you want to talk about your sports, then you are talking about sportsman spirit and you're talking about team, let's say, work, and that would add value. But anything else which is an achievement or a reward which is not very relevant to it, फिर वो ना भी मेंशन करो तो ठीक है। ठीक है, जैसे स्केचिंग का कोई अवार्ड मिला जैसे इसका, तो फिर वो इतना ज्यादा इसमें एड वैल्यू नहीं करेगा। इंटरेस्ट में जरूर लिख सकते हो, अगर तुम स्केचिंग करते हो, अगर तुम गार्डनिंग करते हो, और कोई सेंसिबल होलसम हॉबीज जरूर लिखो। स्क्रॉलिंग द नेट इज नॉट अ हॉबी। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट रीडिंग, स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर डू यू रीड। ठीक है, आई वुड रियली वांट कि बच्चे कम्युनिटी सर्विस के ऊपर लिखें, वॉलंटियर वर्क के ऊपर लिखें अगर आपने कहीं पर भी किया हुआ है, एक्टिविटीज में लिखें, इंटरेस्ट में लिखें। इसका ये मतलब होगा कि it actually adds value to the fact that you are somebody who's responsible and caring. And KPMG की जो पार्टनर आई थी मुनीजा भट्ट, उन्होंने मुझे ये कहा था कि we are seeing very less students working in community service or going for any kind of volunteer work. आप जरूर इनको परसुएट करें कि ये इस तरह के एक्टिविटीज में हिस्सा लें। इससे पता चलता है कि बच्चे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पे बैक टू द सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, और इट मेक सेंस। ठीक है, आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है वो पहले ले आइएगा, इट शुड कम हेयर इमीडिएटली आफ्टर द क्वालिफिकेशन। आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद 5th, फिर आपका ये जो 9th पे हमने रखा है ये 5th पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका इंटर्नशिप का कोई एक्सपीरियंस है। और फिर हमारे पास ये रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस, इफ यू वांट टू नेम आउट रेफरेंसेस, you can give their email addresses, you can give their complete name, and if you don't want to, you can just write that they will be furnished as such. Okay, आपका रिज्यूमे और सीवी आइडियल तो 1 पेज है, बट मैक्सिमम 2 पेजेस होता है। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली होना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा भी आपको बताती हूँ। प्रॉपर लेआउट सभी को पता है, फॉर्मेटिंग में मुझे कोई इतना बड़ा मसला नहीं आ रहा चूंकि आप लोग टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं, बट मैं टेम्पलेट्स के ऊपर जरूर कह रही हूँ कि कुछ बहुत प्रोफेशनल लुकिंग है और कुछ बहुत ही चाइल्डिश है। वो मैं जरा आपको अभी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, सो दैट जस्ट टू गिव अ काइंड ऑफ आइडिया फॉर समबडी हु इज नॉट मेड अ सीवी एज येट और इज प्लानिंग टू चेंज हिज सीवी और इज नॉट हैप्पी विद हिज सीवी। सो यू कैन ऑलवेज आस्क प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर लेआउट वाला, टेम्पलेट वाला आप सीवी का वो उठाइएगा। एरियल, कैलिब्री और न्यू टाइम्स रोमन में लिखिएगा। बहुत ज्यादा स्टाइलिश फॉन्ट स्टाइल लेने की जरूरत नहीं है, इट डज नॉट मेक सेंस। do not, for example, for headings keep on changing on the font styles, or that also looks very childish. अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आप लोगों की फोटोग्राफ्स और वो सब चीज़ों की अलाइनमेंट आउट होती है, चीज़ें बहुत बिखरी भी लग रही होती हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बहुत प्रोफेशनल और नीट लुक आनी चाहिए। एक प्रोफेशनल ईमेल जरूर डालिएगा, कोई भी ऐसा चाइल्डिश सा ईमेल मत यूज कीजिए। मेक अ प्रोफेशनल ईमेल प्लीज फॉर दिस पर्टिकुलर सीवी। और
अपना लिंक्डइन का भी वो डालिएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। मस्ट इंश्योर देयर आर नो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर, चेक कराइएगा। और बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब आप इसका प्रिंट आउट निकाल के देंगे किसी को भी और हमारे पास मॉक इंटरव्यूज के लिए आएंगे तो यू विल टेक अ प्रिंट आउट ऑन अ क्वालिटी वाइट पेपर, ठीक है। जो प्रिंट आउट होनी चाहिए वो बहुत क्लियर होनी चाहिए और ऑन अ वेरी A4 साइज का जो क्वालिटी पेपर होता है, थोड़ा थिक होता है, बिल्कुल फ्लिम्जी सा मरियल सा नहीं, थोड़ा सा फॉर एग्जांपल थिक होता है, वो उस पर लेकर आइएगा। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ब्रॉट आउट दीज प्रिंट आउट्स आई थिंक फ्रॉम TSA से आके निकलवाए थे उन्होंने, कुछ ने आज रास्ते में से करवा लिए थे। बहुत ही पैथेटिक इंक थी, बहुत ही पैथेटिक उसका लुकआउट था। तो जो पैनलिस्ट थे दे रियली कंप्लेन्ड ऑन दैट कि मिस लुक एट द क्वालिटी ऑफ द पेपर दैट दे यूजिंग, they should know at this stage. So I would suggest everyone to be a little more careful. जब आप प्रिंट आउट निकालें तो क्वालिटी पेपर की बहुत अच्छी रखिएगा, यानी कि चूज अ बेटर क्वालिटी पेपर फॉर द प्रिंट आउट, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स तो ऑफ कोर्स यू शुड गेट इट चेक्ड, खुद भी देखो। अब मैं इंपॉर्टेंस ऑफ कवर लेटर के ऊपर भी आती हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखा रही हूँ समथिंग दैट आई वांट टू यू टू सी। मेरे पास जो कुछ स्टूडेंट्स के ये CVs हैं, this is a big no. Why? Because if you look at this red color, it's a real put off, and don't go for these kind of qualification को highlight नहीं किया जा रहा, education sideline हो गई है, ये इस तरह का CV बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसके अलावा I'll show you a CV that has gotten this particular student into AFF, ठीक है। This is a good CV, although I would have wanted a better, far better format, but if you look at it, he had such a lot of things to portray on it, and it was an impressive because he done his bachelor's in maths and business from university in Canada. Then he was a Karachi grammar A-level student, so he had things to display. Work experience bhi tha, internship bhi thi, and then again a volunteer experience bhi tha. स्टूडेंट काउंसिल में भी काम किया, वर्क एट NGO, सर्टिफिकेट्स भी बताए एंड अचीवमेंट्स भी बताए अपने, और फिर रेफरेंस भी। तो फिर दैट मीन्स कि इस तरह का लेट्स से CVs are strong CVs that would get some recognition, that would be accepted, that would be given credence by the HR once they're going through the CVs. What you should not be doing, I'll just show you some of these CVs that I have. This is again a good template, ठीक है। टेम्पलेट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सिंपल वाइट वाले जो टेम्पलेट्स होते हैं वो पिक कीजिए, ठीक है। ये आपका हेडर आ गया, आपका रिज्यूमे या प्रोफाइल आ गया ऊपर, समरी, प्रोफाइल समरी पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। आपने अपना एक्सपीरियंस, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम शुरू में अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेकर आते हैं, उसके बाद हम अपनी एकेडमिक लेकर आते हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव योर सर्टिफिकेशंस, योर स्किल्स। सो दिस इज अगेन अ गुड CV। ये अब बड़ा नीट इसकी भी लुक आएगी, ठीक है। एंड ये जो ऑब्जेक्टिव है, इट कांट बी दिस ह्यूज, ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली 2-liners, ठीक है। सो अगर आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है, अव्वल तो लिखिए मत, आप प्रोफाइल समरी लिखिए और एक बेहतरीन प्रोफाइल समरी यहाँ पर दीजिए, ठीक है। पंक्चुअलिटी इन्होंने लिखा, पंक्चुअलिटी कोई स्किल नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स लिखना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब MS एक्सेल, MS वर्ड स्किल्स को बेहतर तौर पे ब्रेकअप कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी IT स्किल्स, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स, अगेन इन्होंने सर्टिफिकेशन बताई है अपनी, ट्रैवलिंग एंड जॉगिंग, जॉगिंग कोई अगेन students need to think about how are they going to be let's say
questioned about the kind of material that they are giving here? ठीक है, सो कुछ स्टूडेंट्स की जो बेसिक गलतियां हैं वो देख लीजिए आप, बस उनको रिपीट ना करें। जहाँ तक मैं जानती हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अपने सीवीज बना लिए, सो हम ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाते। लेकिन अगर आपको लगता है कि मिस मैंने अभी कवर लेटर नहीं लिखा या मैंने सीवी नहीं बनाई है, आप मुझे हेल्प कर दें, तो आप अलग से भी मुझसे बात कर लीजिएगा। ये कुछ कवर लेटर के मेरे पास सैंपल्स हैं, ठीक है बेटा। कोशिश करो सभी लोग एक ही कवर लेटर जो जपूर के उस पर मिल रहा है वही सारे लोग ना यूज करें। एक एक चाल सी चल जाती है कि भाई एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग, एंड ऑफ कोर्स वंस इट रीचेस दोज HR managers, they are able to identify कि where is it coming from. Try and create your own cover letters, ठीक है। You can use the name, you can customize this dear hiring manager के बजाय, if you know the person's name or the HR manager, you can write that dear HR manager, or you can write the person's name, make it a little customized. ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, मेरे पास 2-3 इसकी कॉपीज हैं, वेरिएशन है इसके अंदर, ठीक है। एंड this is a good cover letter because it starts with a very specific, I'm looking for a trainee or audit associate training position at AFF, and while I'm new to the field of auditing, I bring to the table a solid academic background. Then the person has talked about her background, and then although I may lack direct skills or experience in auditing, I'm a quick learner committed to acquiring the necessary skills. I'm drawn to AF, and she's given a reason as to why the preference, and then the ending on a positive note. Thank you for considering my application. Right? So this is properly written. इतनी आप कहेंगे मिस जरूरी है इतना लेंदी हो, जरूरी नहीं है, आप इससे कम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास और भी कवर लेटर्स जो होते हैं बेटा वो उसकी वेरिएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कवर लेटर शॉर्ट भी है, दैट इज अ लिटिल ब्रीफ, वो भी लिख सकते हो, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें आप ये आपके उधर का देखिए, ये आपने उधर से उठाया होगा, सबूत से किसी बच्चे ने मुझे फॉरवर्ड किया हुआ है। होप दिस फाइंड्स यू वेल, इसकी जरूरत नहीं है। आई वाज टोल्ड बाय एवरीवन दैट एन इंटर्नशिप एट एवरी CA firm is the same. However, I believe that firm's name, reputable client base. I don't find this very impressive, to be very frank, and I find that we can do better than this. ठीक है, इससे पहले वाली जो मैंने आपको दिखाया था, that's a more impressive cover letter. And for a formal letter to start, I was told by everyone that internship at every CA firm is a very lame line to start with. ठीक है, so be more formal in the way you're going to write. Okay, and then we have जी जी जी, आ जाइए आप। ये तो खैर one of the things that we find in are the glitches that are never ending. So we are looking at some of the material that I wanted to show you. एक तो मैं आपको जरा प्रोफाइल समरी दिखाना चाह रही थी, ठीक है। जो प्रोफाइल समरी है हमारे पास वो कैसे आप लिखेंगे वो देख लीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा। जी अच्छा, ये तो एक हम आपको दिखा रहे थे ये लेटर, इसके ऊपर हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब हम जरा बात कर रहे हैं क्विकली ऑन CV ATS फ्रेंडली क्यों होना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए ATS फ्रेंडली के लिए, ठीक है। जब आप बात करते हैं कि इट हैज़ टू बी ATS फ्रेंडली, व्हाट एग्जैक्टली कम्स टू योर माइंड इज दैट कि यू आर यूजिंग द जॉब टाइटल कीवर्ड्स आपको डालने हैं, स्किल कीवर्ड्स डालने हैं, हार्ड स्किल्स लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग, ऑडिटिंग, डेटा एनालिसिस. Include these skills in your skills section, embed them in your job descriptions or education if you've used them, because when they're tracking it on the basis of the keywords. So if you use the keywords, that would become very obvious, and then you'll be able to, your particular resume or CV would come in the forefront, ठीक है, and it would be tracked by it would be easily accessible. Soft skills में आपके पास leadership, teamwork, problem solving, action verbs use कीजिए, analyzed, audited, collaborated. when you're writing it out, cover letter में भी, CVs में भी इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। हमारे पास अभी इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स की तो यूज नहीं है, बट ये कि अपने
जहां भी आप यूज कर सकें कीवर्ड्स जो कि आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं उनको यूज करें, ठीक है। ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वंस यू हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑन योर CVs right now. I believe के relevant certifications, QuickBook, proficient in QuickBooks, SAP, Oracle, इस तरह करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंट्री लेवल रोल के लिए आप अपनी एजुकेशन का एग्जांपल दे रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस लेट्स से, या आप कह रहे हैं कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आपने वो लिखी है। कीवर्ड्स आप फाइनेंशियल एनालिसिस, बजटिंग, इस तरह के कीवर्ड्स यूज करेंगे तो आपकी थोड़ी सी एम्फेसिस ज्यादा हो जाता है इसके ऊपर। ATS फ्रेंडली कीवर्ड्स की वजह से यू आर एबल टू गेट योर रिज्यूमेज इन द स्क्रीनिंग प्रोसेस, वो जरा हाईलाइट हो जाते हैं। अच्छा, एक मैं आपको कवर लेटर ये भी दे रही हूँ। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन, internship position or in audit trainee position, and I'm eager to apply my academic knowledge and analytical skills in a practical setting. बड़ा ट्रेडिशनल सा है और बहुत फॉर्मल है, ठीक है। ये भी इज समथिंग दैट आई गेव लास्ट टाइम एज वेल, एंड स्टूडेंट्स वर एबल टू राइट अ कवर लेटर अकॉर्डिंगली। सो 2-3 कवर लेटर्स दे दूंगी अपने लिए, एक चूज कर लेना और उसके हिसाब से करना। मैंने एक ईमेल भी डाली है इसमें, कवर ईमेल। I hope this email finds you well. I'm writing to formally apply for the finance internship at your audit firm as advertised on your website. ये हमने लिखा हुआ है। I've attached my resume and cover letter for your review. I believe my academic training combined with my key interest in finance and auditing make me a strong candidate for this internship. Thank you for considering my application. They need to convey professionalism, enthusiasm, and a strong alignment with the firm's values and mission. The cover letter provides a more detailed narrative, while the cover email is concise and gets straight to the point. अगर आप email लिख रहे हो तो आप attachment में अपना CV डाल दोगे, और अगर आप for example manually दे रहे हो तो you should have a proper cover letter to accompany your CV, ठीक है। Are we good in this? हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमने CV और उसका, हाँ, एक मैं आपको प्रोफाइल समरी का दिखाना चाह रही थी। Let's see if I can still locate द प्रोफाइल समरी थिंग। देखिए, प्रोफाइल समरी में भी मुझे थोड़ा सा इशू है। प्रोफाइल समरी में स्टूडेंट्स जो हैं वो भी जेनेरिक डाल रहे हैं, थोड़ी सी उसको भी अपने लिए कस्टमाइज कर लीजिए। एक ये है मोटिवेटेड फाइनेंस मेजर, जैसे आप लोग लिख रहे हैं, CA एस्पिरेंट है, with strong analytical and problem solving skills, seeking an internship position to apply academic knowledge in financial analysis, auditing and reporting, adapted using Excel and financial software for data analysis, demonstrated strong attention to detail and teamwork in academic projects and coursework, including financial statement analysis, risk assessment, and audit process, eager to gain hands-on experience in audit procedures while contributing to the firm's success. See, again, try and find out a particular profile summary which is not generic but a little customized. आप अपने हिसाब से इसको थोड़ी सी change करो so that it looks as if you are writing for an internship position and not taken just from the net and just added like this. ठीक है, उसमें आपको एजुकेशन, अपनी स्किल्स बतानी चाहिए, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स का थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए, और अपनी गोल ओरिएंटेड होने का। जब कोई आपसे पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप अपनी प्रोफाइल समरी को ही यूटिलाइज कर सकते हैं उस आंसर के लिए, ठीक है। आप उसी को यूज कर सकते हैं फॉरन। ये मैं आपको हैंड आउट जो है, जो आपके सामने ये शेयर करूंगी आपके साथ, इसमें मैंने काफी सारी चीजें डाली हुई हैं बिकॉज आई प्रिपेयर द बुक फॉर PPE दिस टाइम। जो बुक की आ रही है PPE के लिए हैंड बुक, वो प्रिपेयर की है मैंने, तो उसमें से काफी सारा मटेरियल ये वाला भी है जो मैंने डाला है। एंड आपका इंक्लूड योर लिंक्डइन URL इफ इट्स अप टू डेट एंड प्रोफेशनल। मैनी HR मैनेजर्स चेक द लिंक्डइन प्रोफाइल। वैसे भी आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना चाहिए, ठीक है, और उसको इसमें ऐड करना चाहिए। अच्छा, अब ये तो हो गए बेटा हमारे CV की बातें। इसमें कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लगे कि आपने मिस आउट कर दी, या मेरे पास ये ख्याल था कि ये भी आप करवा देंगी, तो वो आप स्पेसिफिकली पूछ लें, ठीक है। मैं ये अज्यूम करके ये करवा रही हूँ सेशन कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने अपने CVs वगैरह बना लिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो एक जस्ट क्विक रिव्यू सा मैंने दिया है फॉर द CV। व्हाट आई एम रियली इंटरेस्टेड राइट नाउ इज टू गिव यू सम गाइडलाइंस फॉर द टेस्ट। अब आपका ना एक और फिर मैं इंटरव्यू के कुछ कॉमन क्वेश्चंस और उसके आंसर्स में भी आपको थोड़ी सी हेल्प करूंगी, ठीक है। और फिर मैं इन स्टूडेंट्स को भी लेकर आऊंगी जिनको हमने
अपने साथ कनेक्ट किया है फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। नाउ क्लास, थोड़ा सा सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, और हमें ये देखना है कि आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। जी जी जी, अफान जो मुझसे पूछ रहे हैं उसका आंसर यस है बेटा, कि कवर लेटर हमेशा सीवी के साथ ही भेजा जाता है, और ये बेसिक दे गो टुगेदर। द कवर लेटर sort of sets the mood, and it also shows your communication skills, and it also alludes to or refers to the CV, and then the CV is a little more generic and it covers all the aspect. कवर लेटर हमेशा जॉब स्पेसिफिक होता है, आप जिस जगह अप्लाई कर रहे हैं उसके नाम और उसके एचआर के नाम के साथ, और स्पेसिफिक उनके, चूंकि आप लोग ऑडिट इंटर्नी के लिए ही कर रहे हैं तो सब में आप वही लिखते हैं, लेकिन वैसे बता दूं आपको कि जॉब के लिए हमेशा कवर लेटर एडवर्टीजमेंट स्पेसिफिक होता है। जो जॉब एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें स्पेसिफिकेशंस मांगी जाती है, जॉब की बताई जाती है, और देखा जाता है कि कैंडिडेट में ये चीजें होनी चाहिए, वो जॉब आपका कवर लेटर कवर करेगा। और आपका रिज्यूमे जो होता है वो हमेशा थोड़ा सा जेनरिक होता है, बिकॉज इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ वेयर यू हैव रीच्ड एंड व्हाट हैव यू डन। ठीक है, अच्छा, केपीएमजी का जो कराची का टेस्ट हुआ था लास्ट टाइम, 12 अप्रैल को हुआ था, और इट हैज 3 पोर्शंस। द फर्स्ट पोर्शन हैड अराउंड 10 MCQs, टाइम 15 मिनट्स का था। मेरे पास एक हमारी स्टूडेंट है हु हैज क्लियर्ड इट, माशाल्लाह, शी इज इन केपीएमजी, शी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एज वेल। वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगी, मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो फीडबैक है। ये पहला क्वेश्चन अगर आप चेक करें, और इस तरह के क्वेश्चंस को हम एनोलॉजीज कहते हैं। हैप्पी इज टू जॉयफुल एज मेलनकली इज टू, यू विल से सैड, ठीक है, मेलनकली सैडनेस है, हैप्पी इज टू जॉयफुल। आपने कनेक्शन शो करना था। उन्होंने कहा ये बहुत इजी सवाल थे, आसानी से हो गए। डिस्टेंस टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस थे, रेंज रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उन्होंने कहा पीआरसी लेवल के थे। फिर जनरल नॉलेज के 10 MCQs आए, 10 मिनट का टाइम था। ये जरा उनको मुश्किल लगा बिकॉज ये हिस्ट्री रिलेटेड है, एंड वो अभी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। ऐसे और रिपोर्ट राइटिंग पे मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही थी। रिपोर्ट राइटिंग आई थी 30 मिनट्स की। यू आर अ बिजनेस एनालिस्ट, फ्यू चेंजेस इन पॉलिसी इन बिजनेस एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, you are required to make a report which will be presented to the government regarding the impacts of the changes and actionable recommendations. Now, the students were of this opinion that this was not a very lengthy question, and there was a lot of assumption that you had to take. And now, a lot of students had not done any revision of a report format or a essay, and they were flabbergasted, of course, कि भाई ये क्या आ गया और कैसे करना है। ये मुझे समझ आता है, बिकॉज ये आउट ऑफ द ब्लू था। इन्होंने केपीएमजी ने उठा के इसको किसको दे दिया था, ये आईबीए को, और इसलिए प्रॉब्लम आई। मैं ये समझती हूँ कि इस दफ़ा अगर ये रिपीट करना चाहेंगे ये, तो आप लोग प्रिपेयर करें, रिपोर्ट राइटिंग को भी प्रिपेयर कीजिए और एनालिसिस ऑन आर्ग्यूमेंट को भी। ये भी 30 मिनट्स के लिए आया था। इसमें उन्होंने एक स्टडी बताई थी और कहा था कि ये जो सॉक्स के ऊपर उन्होंने जो प्रोडक्ट थी वो सॉक्स थी, और उन्होंने कहा इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है, एंड दिस द कंपनी इज थिंकिंग टू डिसकंटिन्यू इट। Give your response to the argument and explain whether the stated or non-stated assumptions depend on the argument. Also give the implications on the non-warranted arguments. I still feel that the question was not completely given by the student whoever quoted it, but the point is that we got an idea as to what came in the paper. Now, this is a straight question out of your MFA. MFA के तरीके का सवाल है। आप लोगों ने सबने MFA किया हुआ है, of course आपको पता है कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था, रिपोर्ट राइटिंग स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इसका टेम्पलेट और इसकी एनालिसिस। नाउ व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज गिविंग यू अ काइंड ऑफ अ गाइडलाइन। आप रिपोर्ट का लेआउट और फॉर्मेट रिवाइज करेंगे, आप एक दो शॉर्ट रिपोर्ट्स लिखेंगे, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑन दैट। अजम्पशंस हमेशा रिपोर्ट्स में लेने पड़ते हैं और क्वेश्चंस में लेने पड़ेंगे। हर कोई आपको बहुत डिटेल BWCS की तरह पूरा मटेरियल नहीं देगा, और उसको सामने रखते हुए आप जितने भी assumptions ले सकते हैं, ancillary details खुद से इमेजिन करके लिख सकते हैं। मस्ट फोकस ऑन लर्निंग द हेडिंग्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट। पर पैराग्राफ में क्या आता है, मैं आपको रिपोर्ट के क्वेश्चन सेंड करूंगी, और आपके पास एक सैम्पल रिपोर्ट मैंने ये डाल दी है। लास्ट टाइम भी मैंने बच्चों को दे दी थी, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि ठीक है, ये मैंने आपकी क्लासेस में लिखवाई भी है, ये मैंने एक दफ़ा हेडिंग से साथ डाल दी है ताकि आपके पास एक
रफ आइडिया आ जाए कि कैसे करना है. एनालिसिस ऑफ द ऐसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे था, आर्गुमेंट they gave a kind of an argument जिसके ऊपर वो कह रहे थे एनालिसिस करो, and it was in an essay format. You need to revise your MFA. BCG metrics, 4 to 5 forces, value chain analysis, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, 4-5 बड़ी थ्योरीज जो हैं वो ज़रूर देख के जाइए. थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज वगैरह वाला भी एरिया, स्वॉट, पेस्टल, ये ज़रूर करके जाना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आए तो इन्हीं फ्रेमवर्क्स में से आएंगे और आपको उनको अटेम्प्ट करना आना चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको फ्रेमवर्क दे, आपको जो फ्रेमवर्क समझ में आए वो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्वॉट हो, चाहे फॉर एग्जाम्पल वो BCG मैट्रिक्स हो, या वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो, वट एवर दे ट्राइंग टू कनेक्ट, आप उसको लिंक अप करके लिख सकते हैं. You need to show how well can you analyze a given scenario, and you need to give a logical argument to, let's say, support your case, right? That is again something you need to practice. If you're out of practice, please see to it that you're practicing it out nicely, because this would come in really, really handy if we see a similar kind of a test coming in. Last time बहुत ऐसा हुआ था बेटा कि बच्चे prepared ही नहीं थे KPMG के टेस्ट के लिए और फेल हो गए, और वो बच्चा जो कि डिजर्व करता था टू गेट इनटू KPMG, वो उसको टेस्ट जब फेल हो गया तो फिर इंटरव्यू की कॉल्स ही नहीं आई. फिर हमने सैंपल डाला है PwC का, कराची का टेस्ट है ये, ठीक है. इनके फर्स्ट सेक्शन में अकाउंटिंग फाइनेंस आया, सेकंड में डिसीजन मेकिंग पर सिनेरियोज थे टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, मगर इनका सारा MCQs बेस्ड ही था. थर्ड सेक्शन में एप्टीट्यूड और मैथ सेक्शन था. सीरीज थे सिंपल, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के. फिर ये दूसरा एक किसी का फीडबैक है, वो भी मैंने डाल दिया है. उन्होंने कहा कॉमन सेंस के एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चंस थे, ग्राफ, प्रोबेबिलिटी, मिसिंग नंबर, सिंपल इंटरेस्ट, और फिर ये इन्होंने सारे वो बना के दिए क्या क्या सवाल आए हैं, ठीक है. ये आपको रिवाइज करने हैं. जो ये इस तरह के क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मैंने ये थोड़ा सा मटेरियल, एक तो ये स्टूडेंट्स का फीडबैक है, बट फीडबैक के अलावा भी प्रैक्टिस के लिए बेटा मैंने ये डाल दी है कुछ मटेरियल. ये हैंडआउट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप इस मटेरियल को गो थ्रू कीजिएगा, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो पेपर्स में आई हैं, टेस्ट में आई हैं, और आप उसको बैठ के कर सकते हैं. इसमें कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस भी हैं जो इंग्लिश और बेसिक उसके पूछे गए थे, कॉमन सेंस जो बच्चे कह रहे थे एप्टीट्यूड के, और फिर GT के टेस्ट का फीडबैक भी मैंने डाला है. ठीक है, एक बच्चे ने लिख कर दिया हुआ था, वो हमने पिक किया है. और EY का जो रैपिड HR इंटरव्यू हुआ था, या EY रैपिड का, उसका भी मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चंस डाल दिए हैं. अगर आप क्वेश्चंस को चेक करो तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई डिड यू चूज EY, आपका ADC प्रोग्राम का क्या कहाँ तक पहुंचा है, 3 स्ट्रेंथ्स बताइए, 2 एरियाज फॉर ग्रोथ बताइए. दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग, ठीक है. CV से रिलेटेड जो भी आप लिखेंगे वो आपको उसके बारे में पूछेंगे. ये जरूर इसका सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए कि व्हाई डू यू प्रेफर अ सर्टेन फर्म, ठीक है. मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस और निकाल दिए हैं दैट यू नीड टू लुक एट. आप कहेंगे मिस आप क्या इन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स बना के देंगे? देखिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो मैं बिल्कुल आपको दूंगी, लेकिन मैं उसके लिए एक अलग सेशन रखूंगी जिसमें मैं क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकूं. आज की क्लास में मैं क्या कर रही हूँ कि मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ विद स्टूडेंट्स हु कैन गिव देयर एक्सपीरियंस ऑफ द टेस्ट. स्पेसिफिकली मैंने उनसे कहा है टेस्ट के बारे में बात करें. इन द मीन वाइल ये क्वेश्चंस है जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, जो मैंने देखे हैं ज़्यादातर बच्चों के फीडबैक में. बच्चों ने मुझे भी बताए हुए हैं, मेरे पास बहुत फीडबैक है इंटरव्यूज़ का फॉर सो मैनी ईयर्स. बच्चे फीडबैक दे रहे हैं और स्पेसिफिकली देते हैं. मेरे सवाल करने पर भी बहुत बच्चा बताता है कि किस तरह से हुआ. तो इंटरव्यू क्वेश्चन दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, अभी से आप प्रिपेयर करें. Tell me something about yourself that is not on your CV. This is a very very important question that you need to look at. Introduce yourself, discussion on your family background वो करेंगे. जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ आप अपने फैमिली बैकग्राउंड का भी बताते हैं, वो वहां से आपके फैमिली बैकग्राउंड को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं और उस पर भी पूछते हैं. Where do you see yourself in 5 years time? That's a good question, because how goal oriented you are, how do you look at the future, what is your strong ambitions, this is what they would like to see. Why should we hire you? This is another way of asking what are your strengths,
how would you add value to the company, or what can they find in you that others won't have, what are your basic strengths and qualities, वो बताएंगे आप. If you get a call from big three, will you leave our offer and prefer that? ये smaller firms पूछ रही हैं. बड़ा repeated सवाल है जो वो पूछ रही हैं कि अगर आपको बिग थ्री से ऑफर आती है तो आप हमें छोड़ देंगे. इसका आंसर मैंने अभी एक स्टूडेंट को रिसेंटली दिया है, आपको भी दे देती हूँ. आपको उनको बताना चाहिए कि यू आर मोर लेट्स से फोकस्ड ऑन the kind of work experience and exposure and opportunity that you're going to get, especially if you're interested in it. External audit, if I get the opportunity and good clients to work for, then the firm itself does not matter. It's the work environment, it's the mentorship, and it's the opportunity and the exposure that I'm looking for. आप इस तरह से वर्ड आउट कीजिएगा, ब्लंटली मना मत कर दीजिएगा कि हाँ बिल्कुल मैं तो छोड़ दूंगा, मैं बिग थ्री में ही जाऊंगा, ऐसा नहीं कीजिएगा. अभी भी अगर आप उन इंटरव्यूज में जा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ एक्सपीरियंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिसिंग योर इंटरव्यूइंग स्किल्स, उसमें भी आप फर्म्स को बड़े तरीके से जवाब दीजिए सो दैट आपको ये फील हो के यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इंप्रेशंस. ठीक है. What are the three of your strengths and weaknesses? Substantiate your answer through personal experience. ये जरूर पूछेंगे वो आपसे. अगर आप स्ट्रेंथ बोलते हो तो कैसे प्रूफ करो, कहाँ इस्तेमाल की, कहाँ यूज होती है, कहाँ तुमने उसको तुम्हें लगा कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, और तुम्हारी वीकनेस तो कैसे, और उसका क्या इम्पैक्ट आया. हमेशा वीकनेस बताते वक्त बोलिए कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग, और आई हैव ऑलरेडी इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड आई बिलीव विद टाइम आई विल कीप ऑन इम्प्रूविंग आउट ऑफ इट. कि कोई भी आपकी वीकनेस है आप उससे कैसे आउटकम आपने, how have you been able to overcome that particular weakness, what were your steps regarding that, ये जरूरी है. ठीक है. Any example of teamwork and team conflict that you experienced when faced with ethical dilemma, how would you react? They're specifically asking about conflict of interest. आपको सिनेरियो देते हैं, पूछते हैं. Why shift from medical engineering to CA? ये भी सवाल बहुत कॉमन है. इसका आंसर सोचिए कि when they ask you कि आपने मेडिकल से CA में क्यों आए हैं, क्या आपका रैशनल था, क्या आपकी मोटिवेटिंग फैक्टर था, इसके बारे में एक सेंसिबल आंसर बनाइए. आंसर्स बना के चेक करवा सकते हैं, आंसर्स बनाकर याद कर सकते हैं. ठीक है. थोड़े से प्रिपेयर करें बेटा अपने आप को, पॉइंट्स बना लीजिए, पूरा याद मत करें, पॉइंट्स बना लें, एक्सटेम्पोरियनली बोल लीजिएगा वहां पर, बट कुछ प्रिपेयर करके नहीं जाना फॉर अ इंटरव्यू के वहां देखेंगे. इससे बड़ा बेवकूफ़ी का काम नहीं हो सकता. जस्टिफाई द स्किल्स गिवन ऑन द रिज्यूमे. याद रखना अगर तुम 4 स्किल्स दे रहे हो तो 4 स्किल्स को जस्टिफाई करना आना चाहिए कि मैंने कहाँ इस्तेमाल की और कैसे मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ. ठीक है. क्योंकि वो हर एक चीज के ऊपर यही पूछते हैं. ठीक है. हमारे पास भी जो पैनलिस्ट आए थे उन्होंने भी यही काम किया था. इंटरव्यू का के क्वेश्चंस के आंसर्स फ्रेमवर्क्स पे अप्लाई होते हैं. मैंने सोचा ये है कि इंशाल्लाह अभी संडे का मैंने एक क्लास ली है, एक मैं क्लास इसके बाद एक और रखूंगी जिसमें मैं आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो मैंने ये वाले बताए इनके आंसर्स और इनके फ्रेमवर्क्स बना के मैं आपको दूंगी. फ्रेमवर्क मतलब कि किस फ्रेमवर्क के अंदर आप इसको पुट करके अपने आंसर्स बना सकते हो. ठीक है. अच्छा भाई, अब लेट्स सी इफ आई गॉट माय स्टूडेंट्स लाइंड अप. आई गॉट some students lined up. Let's see if they're here. Kindly beta, Safa, if you're in, can you tell me that? Can you just write in the chat if you're here, if you have joined us? Yes. All right. So you're going to um, share the screen. ठीक है. आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा if you're comfortable, and let's see what you have to say. I'm introducing Safa. Safa Mukim is my PP student as well as, mashallah, is an outstanding student when it comes to studies. She's in KPMG and she's going to be looking at this particular. ये आपको KPMG का अपना एक्सपीरियंस बताएंगी. आ जाइए बेटा. Over to you बेटा. Again, let me introduce Sheikh Hassan, an outstanding student. I'm sure he's going to be full of a lot of information to give, and mashallah, he's been very, very enterprising throughout the sessions. ये भी हमारे पीपी के स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट हैं, और टीएसए के अंदर एक बहुत lively and very committed student. Let's hear him out. ये आपको हेल्प करते हैं, अपने बारे में इंट्रोड्यूस भी कराएंगे और आपको बहुत सारी टिप्स भी देंगे. जी बेटा. Hassan, over to you बेटा. Ji, first of all, I'll introduce myself. My name is Sheikh Mohammed Hassan. I am currently inducted in Yusuf Adil Chartered Accountants, and for a little
twist. My induction is not in audit department. I am inducted as an advisory trainee there. I currently have completed advisory assignments and right now I am posted in the audit department. First of all, I would like to thank Miss Saima. हमेशा से मिस बड़ा ख्याल करती हैं और मिस ने अभी यहाँ पर भी बुलाया है टू गाइड यू ऑल. मैं इस इंडक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले ये कहूंगा कि दिस होल प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन योर फेट. आपकी स्किल से हट करना तो बस नसीब की सारी बातें. और अगर नहीं होती आपकी कहीं इंडक्शन या लेट होती है या आपकी मनचाही फर्म में नहीं होती तो बस यही इसी बात पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला की उसमें कहीं बेहतरी होगी. जैसे मेरी पीडब्ल्यूसी में इंडक्शन नहीं हुई, मेरी या केपीएमजी में नहीं हुई, बट आई गॉट इंडक्टेड हेयर. सो ये भी बेटर देन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. तो आप उस चीज को ध्यान में रखें. और जैसे मैंने अपना बताया कि मैं एडवाइजरी डिपार्टमेंट में हूँ. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्क एडवाइजरी एक डिपार्टमेंट है, पीरा डिपार्टमेंट कहलाता है वो यूसुफ आदिल का. और उसके अंदर ये कि हमारे पास लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट सारे हैं. और उसमें ये कि एडवाइजरी की असाइनमेंट्स ऑडिट से बहुत अलग होती हैं. मैं आपको चीजें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू डेवलप एन ओपन माइंडेडनेस रिगार्डिंग कि चीजें ऑडिट से भी हटकर हैं फर्म में. फर्म के अंदर ऑडिट सिर्फ ऑडिट नहीं है. और अब ऑडिट के अंदर हायरिंग भी बहुत लिमिटेड हो रही है बाय इधर बिग थ्री और इधर बिग फाइव. मैं जीटी वीडियो की बात कर रहा हूँ. अच्छा, मूविंग ऑन के आप अगर अपने ये जो टाइम पीरियड है टिल योर रिजल्ट्स, आप इसको प्रॉम्प्टली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. मेरे नजदीक आप इसको ऐसे यूटिलाइज करें दैट आई हैव बिन फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. मैंने काफी बुक्स पढ़ी थी. मैंने स्पेशली कम्युनिकेशन के ऊपर डेल कार्नी की बुक पढ़ी थी. और रिगार्डिंग कम्युनिकेशन मैंने अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत वर्क किया है. मिस एमा हैज बीन माय मेंटर थ्रू आउट. और उन्होंने मुझे काफी चीजों पे गाइड किया ऑनलाइन एंड इवन थ्रू पीपी या उसके बाद भी. अच्छा, टेस्ट के हवाले से मैंने इसको भी एक चीज बताई थी, आप लोगों में से शेयर किया होगा. ब्रिटिश काउंसिल जो इंग्लिश स्कोर टेस्ट वाली एक एप्लीकेशन है, आप अगर उसके ऊपर जाएंगे इवन दो यू वोंट बी ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि वो सर्टिफिकेट एक्वायर करने की आपसे एक डॉलर्स में फीस मांगता है. यू कैन हैव इट फॉर योर ओन प्रैक्टिस. आप वो प्रैक्टिस वहां से कर लें इन इंग्लिश. क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ईवा फोर्ड रोड्स का टेस्ट दिया था. तो ईवा फोर्ड रोड्स के टेस्ट में they had a lot of questions similar to what I attempted in British Council. British Council के अंदर इस तरह था कि for a 1 minute or a 1.5 minute MCQ, I had a voice note of 30 seconds. मुझे वो voice note सुनना है. In either a man or a woman would be telling something, and I have to given the options में से मुझे उसमें आंसर देना. तो एक वो इस तरह के एमसीक्यूज बहुत मुझे डिफरेंट लगे. ये सारी चीजें पीडब्ल्यूसी के टेस्ट में नहीं थी या फिर एज फार एज आई नो केपीएमजी के टेस्ट में नहीं थी. और अकाउंटिंग के जो सवालात थे दैट वाज क्वाइट नॉर्मल फॉर अ कैफ स्टूडेंट. इतने मुश्किल नहीं होंगे, वो मोस्टली आपकी बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज से थे. इंग्लिश के टेस्ट बहुत अच्छे थे. इंग्लिश के टेस्ट में काफी आपकी बेसिक आपके टेंसेस भी टेस्ट हुए थे, आपकी लिसनिंग हियरिंग भी टेस्ट हुई थी. ईवाई के टेस्ट की बात कर रहा हूँ. और आपके जो सिचुएशन एनालिसिस है वो भी टेस्ट हुए थे. इवन इतना भी था कि वो जो एप्टीट्यूड पार्ट था ना उसका, उसमें ये था कि एक छोटी सी ईमेल दी हुई है, उस ईमेल का सब्जेक्ट भी है, उस ईमेल की बॉडी भी है. एंड नाउ यू हैव टू टेल के उस ईमेल के अंदर एक्चुअल इशू क्या डिस्कस हुआ है, व्हाट इज बीइंग एड्रेस्ड इन दैट ईमेल. मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिस्ट डाउन भी करी थी बिकॉज आई हैव टू गो थ्रू लिटिल वास्ट पीडीएफ्स ऑफ माइन. आप प्रिपेयर करना चाहें, मैंने प्रिपरेशन की भी साइट्स मुझको बताई. एक तो ब्रिटिश इंग्लिश वाली चीज केम अप विद इट रिसेंटली, इससे पहले का मुझे नहीं पता था. मैं रिसेंटली इसके मुझे पता चला तो मैंने मुझसे शेयर करी. एक ये है, एक आप वही इंडिया बिक से कर सकते हैं बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग, वो डिस्टेंस टाइम के सवाल, मैथ्स रिलेटेड वो सारी चीजें आती हैं. एथिकल क्वेश्चंस भी आप, क्योंकि ऑडिट के अंदर आप पढ़ते हैं ना एथिकल रीजनिंग और ये जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन चीजों से रिलेटेड, तो वो भी उसमें अगर आपको सिचुएशन दे देते हैं और एथिकल डिलेमा पे आपसे सवाल कर लिया जाता है. तो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं. आप इंडिया बिक से प्रिपेयर कर लें. आप
मैं कहता हूँ कि हालात हाजरा से वाकिफ रहने के लिए आप ये जो न्यूज़ पेपर्स हैं पढ़ा करें। जैसे एक वेबसाइट है, आई डोंट नो इफ यू नो दैट, मेटिस ग्लोबल करके, METTIS, मेटिस ग्लोबल। अब मेटिस ग्लोबल पर भी बहुत सारी फाइनेंस रिलेटेड न्यूज आती रहती है रिगार्डिंग पाकिस्तान ऑफ कोर्स। और ग्लोबल जाना है तो यू कैन ऑफ कोर्स सर्च इट, बट पढ़ के जाएं, ठीक है। अब ये प्रिपरेशन के हवाले से बात हो गई। अगर हम जीटी के टेस्ट की बात करें, इसने भी आपको वो भी दिखाए हैं सारे रिव्यूज एंड ऑल। जीटी के टेस्ट में भी ये है कि आप ऐसे लिखना आता हो, जब आप पेपर आपके हाथ में आएगा ना जीटी का, तो उसमें ऐसे का टॉपिक मेंशन नहीं होगा। दे हैव लास्ट 15 मिनट्स फॉर राइटिंग दी ऐसे। और उस 15 मिनट जब बच जाते हैं ना, तो वो खुद ही बोलते हैं कि आए हम आपको टॉपिक बताते हैं, और वो उसी वक्त टॉपिक बताते हैं और उसी वक्त आपको ऐसे लिखना पड़ता है। तो आप ऐसा भी नहीं कि स्टार्ट में पता चल जाए तो आप थोड़ा सा 5 मिनट लगा के सोच लें कि यार ये टॉपिक है। सो दैट इज वेरी इम्प्रॉम्प्टू, यू हैव टू बी गुड एट दैट। जीटी के टेस्ट में एक डिफरेंस ये है बाकी टेस्ट से कि जीटी के टेस्ट में कंपनी लॉ के सवाल बहुत आते हैं। तो आपके कंपनी लॉ अगर आपका अच्छा है, यू मेक, मैं फ्लो चार्ट बनाता था कंपनी लॉ के, तो आई वॉज लिटिल गुड एट इट। जो सवालात होते हैं, जैसे एक रेपिटेटिव 4 फिगर्स होती हैं, विच फिगर इज नेक्स्ट, ये वाले सवाल पीडब्ल्यूसी में बहुत रिपीट हुए। ये वाले सवाल मैंने और भी जगह देखे, ये वाले सवाल वीडियो के टेस्ट में भी हैं। और वीडियो के टेस्ट में भी ऐसे हैं। अ, उसके अलावा केपीएमजी के टेस्ट में, अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट बीन पार्ट ऑफ केपीएमजी टेस्ट, बट केपीएमजी के टेस्ट में आपको जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि उस टेस्ट में मेनली क्या पूछा गया था, क्योंकि इस दफा टेस्ट का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। बाकी इंडिया बिक्स ये एक अच्छी वेबसाइट है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीजें एक जगह कर लें, यू हैव टू अडॉप्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर द प्रिपरेशन। बस इसके अलावा आप अपनी कम्युनिकेशन पे मेहनत कर सकते हैं। आप इंटरव्यू के अंदर, जैसे मिसने भी कहा ना कि वो पूछते हैं कि आपने बिग 4 बिग 3 में जाने नहीं जाना, तो मैं उसके ऊपर बड़ा मैंने अभी रिसेंटली इंडस्ट्री का भी इंटरव्यू दिया था। तो इंडस्ट्री में भी व्हेन आई वाज इंडिया बिक्स, BIX, तो इंडस्ट्री में मैंने अभी इंटरव्यू दिया था। तो एट द टाइम व्हेन आई वाज इंडक्टेड इन अ फर्म ना, तो उन्होंने तब भी मुझसे पूछा कि आप जब फर्म में इंडक्टेड हैं, व्हाई डू यू वांट टू ऑप्ट टू एन इंडस्ट्री। तो मैंने तब भी उनको यही जवाब बताए थे कि तब यू हैव टू शो योर विलिंगनेस टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। आप उनको ब्लंटली नहीं कह सकते कि हाँ देखूंगा अच्छा लगा तो, बिकॉज आप CFO से आगे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं। यू हैव टू शो योर विलिंगनेस कि आप आए हैं। बिकॉज अगर आप थोड़ी सी भी आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा ना, तो वो कहेंगे कि यार इस बच्चे को हमारी जरूरत ही नहीं। तो आपको वो चीज अडॉप्ट नहीं करनी। रिगार्डिंग इंटरव्यूज, इंटरव्यूज शुड बी प्रिपेयर्ड, बट जैसे मिस समझाती हैं कि यू शुडंट बी रीडिंग अ बुक देयर, या फिर वहां पे जाके कुछ सुनाना नहीं है याद किया हुआ। थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्ट होना चाहिए, लेकिन आपको तैयारी होनी चाहिए। यूसुफ आदिल का मामला है कि यूसुफ आदिल में जैसे टेस्ट नहीं होते, लेकिन यूसुफ आदिल में जब पहला इंटरव्यू जो डायरेक्टर या फिर इधर मैनेजर लेते हैं, तो वो ऑडिट की बेसिस पर ही लेते हैं। तो आपकी तब ऑडिट स्किल्स काफी टेस्ट करते हैं, वो ऑडिट के सवालात बहुत पूछते हैं। तो आपके वहां पर ऑडिट की चीजें अच्छी होनी चाहिए रिगार्डिंग IFRS एंड ऑल, ऑडिट की, IFRS की। बाकी एक मैं चीज स्पेसिफाई करना चाहूंगा, मेरी दोस्त से बात हुई तो वो भी कहता बताना कि whatever you have written in the CV, you are able to justify each and every word you have written in your CV. आप हर लफ्ज जो भी आप लिख रहे हैं ना, ये सोच समझ के लिखिएगा कि कल को आपसे उस पर सवाल हो सकता है। जो सामने इंटरव्यू बंदा ले रहा है ना, वो बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, और वो आपको किसी भी एंड से ना क्रॉस एग्जामिन या क्रॉस चेक कर सकता है। जैसे मैं अपनी स्किल्स के अंदर अगर लिखता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर मैंने अपना कोई भी सर्टिफिकेट मेंशन किया हुआ है, तो दे विल आस्क मी डीप डाउन कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की एग्जांपल दो। या फिर तुमने अडेप्टेबिलिटी लिखा है, तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी कहाँ आज तक टेस्ट हुई है। तो यू हैव टू क्रिएट एन आंसर फॉर ईच एंड एवरी वर्ड यू हैव रिटन इन योर CV। आप उनको मेंशन करें कि अगर आप कहीं एक्सपीरियंस है, आपका कहीं करंटली आप अभी कहीं काम कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो आफ्टर ड्यूरिंग दिस 2 months पीरियड इन द क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे ज्वाइन फर्म एज एन MTO। तो आप वहां पर मेंशन करें कि मैं यहाँ पर एज एन MTO हूँ। आप उनको क्लियरली हर चीज बताएं। और आप अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि आप कोई बड़ी बात बोल सकते हैं, मार सकते हैं, तो फिर वो चीज बैकफायर हो जाती है। आपको संभालनी आनी चाहिए अपनी कन्वर्सेशन। उसके अलावा ये कि इंडस्ट्री के इंटरव्यूज के हवाले से बस मेरी एक गाइडलाइन है कि MFA की तैयारी आपकी अच्छी हो। बिकॉज इंडस्ट्री जो है वो, जो लोग वहां बैठे हुए हैं, दे आर डूइंग बिजनेस देयर। तो बिजनेस जितना भी आप समझते हैं ना कैफ के अंदर, वो आप MFA में ही पढ़ते हैं।
तो यू हैव टू नो, जैसे सेल्स बजट के हवाले से सवाल हो गए, ब्रेक इवन से सवाल हो गए, मुझसे competitive फोर्सेस के हवाले से सवाल हो गए, दैट हाउ विल आई एनालाइज माय कंपेटिटर एंड हाउ विल आई डिटरमिन द सेल्स प्राइस एंड ऑल, ऐसे सवाल हो गए। उसके अलावा ये कि आप इंटरव्यू के अंदर जब जाएं तो आप अपने आप को वही काम रखें। सवालात इंटरव्यू से एंजाइटी तो होती है, आप इंटरव्यूज के लिए मैं कहता हूँ बंदा जगह जगह अप्लाई करे और जगह जगह देकर आए इंटरव्यूज, लेकिन इंटरव्यू की जो एक एंजाइटी होती है ना, वो आप जाहिर है जब इंटरव्यू देंगे तो ये आपके, आप मॉक इंटरव्यूज के अंदर में सामा अच्छी तैयारी करवा सकती हैं, मॉक इंटरव्यूज के अंदर बहुत सी तैयारी हो जाती है, आपको अंदाजा हो जाता है कि इन्वायरमेंट किस तरह का होता है, बट स्टिल आपको अपने लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाला सवाल है, उसके अंदर ये कि मोस्टली एचआर बता देता है कि लेट इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, टेलिंग अबाउट योर एजुकेशन एंड दिस एंड दैट, बट एक उसके अलावा भी एक पैटर्न आप सेलेक्ट कर लें कि आपने किस तरह से बताना है, आपकी हॉबीज। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ जस्ट ट्राई टू बी मोर डाइवर्सिफाइड, जैसे कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा आपकी हॉबीज हो, जितना उनको एक ऑलराउंडर स्टूडेंट मिलता है ना, द मोर दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट स्टूडेंट, कि ये बच्चा ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, चलो इस बच्चे को ये भी आता है वो भी आता है, और आपको आना चाहिए, आपको वही मैं कह रहा हूँ जवाब देना आना चाहिए, आपकी एजुकेशन कंप्लीट है। वे शॉर्ट अल्फाजों में, यू सेल मी दिस पेन वाली जॉर्डन बेलफोर्ड की आपने सुनी होगी ना, तो सेल मी दिस पेन जो होता है ना, यू आर दैट पेन, तो यू हैव टू सेल योर सेल्फ इन द बेस्ट वे पॉसिबल। जैसे पीडब्ल्यूसी है कि इंटरव्यूज के अंदर वो आपसे कैफ की नॉलेज नहीं टेस्ट करते, वो उन्होंने आपसे जो टेस्ट लिया था उसमें पता कर लिया, उसके बाद वो आपकी पर्सनैलिटी को देख रहे होते हैं, उसको स्कैन कर रहे होते हैं। केपीएमजी भी यही करता है, वो टेस्ट ले लेता है, उसके बाद इंटरव्यूज में आई डोंट थिंक सो कि केपीएमजी इतना एनालाइज करता है आपकी कैफ की नॉलेज, बजाय कि, या बीडीओ है, बीडीओ भी इंटरव्यूज के अंदर यही पूछता है, क्योंकि वो टेस्ट ले लेते हैं पहले, वो इंटरव्यूज में आपके हाल अहवाल पूछते हैं, आपकी हॉबीज पूछते हैं, आपकी एक्स्ट्रा विलिंगनेस देख रहे होते हैं कि कितना सीरियस है बच्चा टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन एंड टूवर्ड्स दिस। एंड में मैं ये बात कहूंगा कि आप, बहुत चीजें आपके नसीब की होती हैं, आपका हो जाए, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो भी अच्छा, मैं इस बात से रेफर करता हूँ। और आप कोशिश करें कि आपका अच्छी फॉर्म में हो, आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन एट दी एंड ये नसीब की चीज है, और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें हर टेस्ट क्लियर करने की, हर जगह जाने की, हर अप्लाई करने की। और ये कि मैं फिर ये कहूंगा ओपन माइंडेडनेस रखें, क्योंकि फर्म्स ना अब एज एन ऑडिट कम हायर कर रही हैं, तो जैसे हमारी यूसुफ आदिल में ही 2 बच्चे इंडक्ट हुए एज इन आईटी ऑडिट, अब दे वर अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग, तो आप इस पर भी अपनी रिसर्च करें कि दूसरे डिपार्टमेंट्स क्या हैं। PwC has inducted a lot of students. Second alumni will tell you about the PwC. But a lot of students has been inducted in tax as a tax associate, as an audit trainee नहीं हुए, जैसे मैं एडवाइजरी ट्रेनी हुआ हूँ, तो इट इज अ डिफरेंट होल न्यू वर्ल्ड। इंटरनल ऑडिट भी है, इंटरनल ऑडिट भी करते हैं, इंटरनल ऑडिट इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड एंड इट इज अ वेरी 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 लर्निंग फील्ड। In advisory, I have my supervisor who has done internal audit articles from GT, and he is a very capable person. तो वो चीजें इंटरनल ऑडिट वाली जो हैं, या फिर एडवाइजरी है, या आईटी है, या टैक्स है, तो टैक्स के अंदर पीडब्ल्यूसी इज हायरिंग, यूसुफ आदिल में अभी तक टैक्स में इतनी हायरिंग है नहीं, बट यूसुफ आदिल में एडवाइजरी के 3 डिपार्टमेंट्स है डिफरेंट। अच्छा, मेरा डिपार्ट ट्रांसफर अभी ऑडिट में इसलिए बिकॉज आई कम अंडर द ऑडिट पार्टनर, तो मेरा भी जिसे कहते हैं टेम्पोरेरी ट्रांसफर ऑडिट में हुआ है, वरना मैं एडवाइजरी के क्लाइंट्स देख रहा था। तो ये चीज के लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि बच्चे से ना तब सवाल, पिछले जो अटेम्प्ट में इंटरव्यूज हुए हैं, इवन केपीएमजी पार्टनर आई एनकाउंटर्ड अ स्टूडेंट, उससे मेरी बात हुई, तो उसको केपीएमजी पार्टनर ने वही इंटरव्यू में ऑफर किया दैट वी आर गिविंग यू द ज्वाइनिंग ऑफ एडवाइजरी डिपार्टमेंट, वुड यू लाइक टू ज्वाइन और नॉट। उस बच्चे ने मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं मुझे तो ऑडिट में जाना है, और उसने वो स्पॉट छोड़ दिया। जबकि अगर आप ये इन चीजों की आप अपने टीचर से कंसल्ट करें, आपने सीनियर्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स, या फिर आपके जानने वाले हैं, आप उनसे ये चीज समझें कि वो ज्यादा बेहतर, क्योंकि अब मार्केट बहुत डाइवर्सिफाइड हो गई है, और ये कि वो अब इंडक्ट कर ही नहीं रहे, फर्म्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं। और इंडस्ट्रीज का ही मैंने आपको कहा, आप इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं, द मोस्ट इंडस्ट्रीज के अंदर बस एक कौन होता है रिगार्डिंग द मोबिलिटी, मोबिलिटी के इश्यूज होते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री, एवरी कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर देन यूनिलीवर, every other company that is inducting you has not international affiliation like the audit firms have. So because of that international affiliation thing,
people prefer not to move to industry for the articleship. But since there is a scarcity of jobs regarding the audit trainees or the CA trainees, तो people do move towards industry. और मुझे मिले हैं इंडस्ट्री के इंटरव्यू के वहां पर वेटिंग लाउंज में बहुत ऐसे लोग that इंडक्ट हुए हुए 6 महीने दे हैव नो इंडक्शन. तो डू योर बेस्ट, बाकी अल्लाह पर तवक्कल करें, अल्लाह से दुआ मांगे, नसीब में अल्लाह ताला आपके बहुत अच्छा लिखे. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. Thank you so much, Mera Beta. That was, as always, very informative. And I'm sure the students gained a lot of value from your input. And thank you so much for your time. Ji Safa Beta, can we connect with you? अब आप जरा कोशिश करें आपके Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. How are you, beta? I'm good. How are you? I'm fine, and I'm very happy to see you. बहुत अच्छी बात है. You took out time. I know you people don't have time these days, but ये के so nice of you to take out time. जी, मेरा बेटा, let's start. So, Assalamu alaikum. My name is Safa Mukim, and I just got inducted in KPMG Tasir Hadi & Co. And I'm under audit department. And I just want to say that it, like Hassan was talking about, it depends on fate. It all depends on fate and your hard work. You have to pay and do your hard work as well. You can do wonders there. So first of all, I will talk about how I prepared for my test and interview. After my KEF exams, there was a month and I make schedule for the material Miss Saima exchanged with us on the group and on the CA professional group as well. And then I make schedule कि मुझे इस दिन कौन से टॉपिक करना. I know it's difficult for all of us शेड्यूल को फॉलो करना. I know this and मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है ऐसे करना. लेकिन the thing is that day I just get जरा सा भी इधर उधर अपने शेड्यूल से मैं उसको फिर से रीशेड्यूल करती हूँ ताकि मैं उसी दिन से एंड यू नो कि जिस दिन आप शेड्यूल बनाते हैं उस दिन आप उसको सही से फॉलो करते हैं. एंड आफ्टर 2 to 3 days यू आर नॉट एबल टू फॉलो दैट शेड्यूल जो आपने बनाया होता है. लेकिन even if you are not able to focus on that schedule, you can reschedule all the topics again. And that's how I covered everything, my CAF syllabus and also related to all the material which Miss Saima sent and the material on the India Bix website. So that's how I prepared for my test and interview. So KPMG का test तब हुआ था जब हमारा रिजल्ट भी नहीं आया था. रिजल्ट से पहले KPMG का टेस्ट हो गया था. And it actually include 3 portions and which Miss Sana actually showed on the screen as well, which contains IQ based general knowledge and essay writing and report writing. For IQ based it was so easy, like time, distance and number series, everything. Yes, they actually tested PRC level questions as well, like range wale questions. And for the general knowledge part, they tested history. And for me, I actually read newspapers. Even if I'm not reading whole newspaper, I read the headlines of those newspapers so that I get to know about what's happening in the world. So वो portion मेरे लिए difficult था इसलिए because मैंने history की इतनी ज़्यादा नहीं research की थी. I was reading about current affairs, so you should guys remember this thing कि आपको history की preparation भी करनी है साथ में current affairs के साथ साथ. And for the test, there was report writing and argument analysis. In report writing, the question was so general and you have to take so many assumptions. And in BWCS, हमने report writing
करना सीखी है, मिस साइमन हमें सिखाई है, तो you would be able to do that आराम से. And for the argument analysis, there was a whole big scenario जिसमें उन्होंने बताया था कि Soxy company है, and you have to like the customers are saying कि manufacturing process is not good and you have to like exchange it, and we have to give the analysis on that argument कि हमें क्या करना चाहिए. Like company was thinking कि customer सही कह रहा है, and we have to work on that. So we have to give उसके ऊपर analysis. So the thing is that I used MFA के concepts उस वाले part में, the argument analysis में Porter 5 forces, and it was actually how it was supposed to do. I talked about this with Miss Saima, and she said कि yes, you have to like apply MFA concepts and this wala part. So this is how my test went, and then I got a call from KPMG. It was a partner interview. They didn't tell me कि कौन सा interview होगा, and I called them back and to ask के कोई HR level का, manager level का interview है या partner level का. So there was only one interview which was of partner level, and both the partners were one of is Ma'am Muniza Bhatt, and the other was Sir Zishan Rashid. And they actually asked me about my introduction, like introduce yourself. Even in KPMG, they didn't look into my CV. For PwC, they asked for my CV, and for the Yusuf Adil video, आपको email करनी होती है अपनी CV. लेकिन KPMG ने मेरी एक भी बार CV नहीं देखी, even though I worked on it बहुत ज़्यादा. तो उन्होंने मेरी CV एक भी बार नहीं देखी. I went in there and they asked about my introduction, and then they asked about my hobbies, and then I told them about reading books, and Ma'am Munisa and I were actually talking about that particular book, which is my favorite. She asked me about my favorite book, and we were actually talking about that particular book. So that was a 1 or 2 minute conversation. Uske baad Sir Zishan Rashid asked me about why such a switch from FSC to a commerce field. So at this point, you have to be honest, and honest in the sense कि आप बिल्कुल ये भी ना कहें कि आपको कहीं और नहीं मिल रहा था तो हम लोग यहाँ पर आ गए. For me, it was. लेकिन the thing is कि I actually applied for MBBS twice and I didn't get into there, and I told them about it, and then I said I always wanted to do something challenging. Like I like challenges. So that's how I thought about CA. That's what I told them, and they were quite impressed by my answer. Uske baad, they just asked about 2 technical questions, which was related to audit cycle and types of audit reports. That's it. It was total of 3 to 4 minutes interview, and yeah, uske baad there was a presentation wala part bhi KPMG ne liya tha. I think that was because of KPMG Lahore, because they actually hired more people, like they shortlisted further इंटरव्यू के बाद भी. लाइक इंटरव्यू के बाद उन्होंने प्रेजेंटेशन वाला पार्ट किया, एंड उसमें उन्होंने फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग की थी. बट आई थिंक फॉर KPMG कराची इस it was just for the formality, because KPMG लाहौर कर रहा था, because all the students whom I saw वहाँ पर, तो वो सभी इंडक्ट हुए थे मेरे साथ. तो देयर वर 3 to 4 टॉपिक्स उन्होंने हमें ईमेल की थी कि आपको इसके ऊपर देनी है. लाइक एक हफ्ते पहले की थी, और उन्होंने कहा था इस दिन आपको आना है और 4 मिनट्स के आपको इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है. लाइक नो स्लाइड्स एंड एवरीथिंग, बस लाइक अ स्पीच ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. तो देयर वर 3 टॉपिक्स जो मुझे याद हैं अभी. एक AI से रिलेटेड था, एक था कि व्हाट आर द फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कि मैंने चूज किया था, और एक था ESG से रिलेटेड. तो यू कैन टेल कि ये तीनों जो टॉपिक्स थे ये हमारी ही फील्ड से रिलेटेड हैं, और लाइक इफ यू डोंट नो अबाउट दैट टॉपिक, तो इट वुड बी लाइक अ बिग प्रॉब्लम फॉर जो वहाँ पे दे रहा होगा प्रेजेंटेशन. So my topic was future of professional services, and yeah, that was it. And I then got called from the KPMG on the same day that you have been hired. Yeah, that's how I
got into KPMG. Audit procedures, it depends. Like I saw so many of the feedbacks जो मेरे बाद आई थी, जिसमें उन्होंने audit procedures और scenarios के बारे में पूछा था. But it depends कि आपके पार्टनर क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे. मुझसे उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन इतने नहीं पूछे थे. उन्होंने मुझसे ऑडिट साइकिल के बारे में पूछा था और टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछा था. दैट्स इट. उन्होंने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा टेक्निकल क्वेश्चंस में. सो इट डिपेंड्स. लेकिन आपको तैयारी सारी करनी है. जैसे मैंने कहा कि मैंने शेड्यूल बनाया था, मैंने उसमें कैफ का भी किया था रिवीजन, और इवन द मटेरियल विच मिस साइमा सेंड ऑन द ग्रुप, और सीए प्रोफेशनल्स की जो ग्रुप है उस पर भी शेयर हो रहा था. तो जस्ट लुक इनटू द फीडबैक जो आपको पिछले साल की हो या पिछले अटेम्प्ट की हो. लाइक इन माय केस केपीएमजी ने तो एक साल बाद इंडक्शन की थी, क्योंकि उससे 6 मंथ्स पहले नहीं हुई थी इंडक्शन. हमारे 1 साल बाद हुई थी इंडक्शन. सो हमें थोड़ा ये था कि अब पता नहीं क्या डिफरेंट होगा, बिकॉज इससे पहले जो टेस्ट हुआ था वो बिल्कुल डिफरेंट था, और अभी जो टेस्ट हुआ वो बिल्कुल डिफरेंट है. सो इट डिपेंड्स कि कैसा टेस्ट आता है. यू आर जस्ट एबल टू टैकल विद ऑल द क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं. आपको कैफ से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आपके है. आपको पीआरसी की भी होनी चाहिए, नॉट जस्ट कैफ. लाइक आई टोल्ड के उसमें आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में पीआरसी के भी कुछ थे पोर्शन जो कि टेस्ट हुआ था. And you should know what is happening in the world right now, क्या चल रहा है, current affairs, and also about the history, जो कि मेरा अच्छा नहीं हुआ था. I will recommend all of you कि आप history से related और थोड़ी रिसर्च करें, and then उसको पढ़ के टेस्ट देने के लिए जाएं. I actually spoke in English उनके सामने, and they were talking in both language. Like it was not सही से इंग्लिश, लेकिन वो उर्दू इंग्लिश मिक्स थी. एंड आई वॉज ऑल्सो गिविंग देम द आंसर दोनों मिक्स में ही. तो अगर आपका इंटरव्यूअर जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उर्दू इंग्लिश मिक्स है, तो यू हैव टू गिव देम द आंसर उसी लैंग्वेज में, लाइक इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में. तो और अगर उर्दू में करें तो ट्राई कि आप उर्दू में ही जवाब दें, वरना यू नो कि व्हेन दे कैन स्विच टू इंग्लिश वी वोंट बी एबल टू get with that. So yeah. Any other questions? Acha. Work environment, it depends partner to partner. Like Anna, my partner, it's a nice environment. When I got into KPMG, मुझे लगा था, मैंने ये सुना था अपने सीनियर से कि बहुत ज़्यादा इस्लामिक होता है environment, but ऐसा कुछ नहीं था. It was normal, not liberal, लेकिन it was okay, and the environment is nice. Safa, mera beta, thank you so much for your time and for You're your welcome. feedback. You have given them a lot of information, and I'm sure it's going to add value to their understanding and how they'll prepare for the test. Thank you so much for your time, mera beta. Thank you so much, Miss. Thank you so much for inviting me. Yeah. Thank you. Thank you. Good luck. All right. Thank you, mera beta. And mera beta, ye Zainab, are you there? हाँ भाई ज़ैनब. Yes, आप अगर अपना screen share करो. And we are waiting for Zainab. Am I audible? Yes, you are audible. You can share the screen as well. If you don't want to open the camera, that's okay. बेटा अब हमारे पास जो हमारी एलमना है, ये भी हमारी पीपी की स्टूडेंट भी हैं, और अब माशाल्लाह से ये पीडब्ल्यूसी में हैं. एंड Zainab has been an outstanding student throughout. I mean, मैंने तो उस बच्ची को ऑफ कोर्स पीआरसी में पढ़ाया, मैंने इसको पीपी में भी देखा है, मैंने इसको आईटीबी भी पढ़ाया है. एंड इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है. इसका पीडब्ल्यूसी में होना मेरे लिए कोई ऐसा हैरान कुन बात नहीं थी, क्योंकि बहुत मेहनत से काम कर रही है. एंड शी गॉट इनटू अ गुड फर्म. आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हर. सो आई invited her to come in and share her part of the journey and how she's been able to reach there. So let's over to you, mera beta. Zainab. Thank you so much, Miss. I'm facing some issue. आपने शायद disable किया हुआ है screen sharing.
नहीं मेरा बेटा, हमारी तरफ से कोई डिसेबल नहीं है, आप करो आराम से, स्क्रीन शेयर करो। Okay, let me try again. नहीं, डिसेबल ही आ रहा है. अहमद बेटा देखो जरा। अच्छा आप शुरू तो करो, आप अपना स्टार्ट करो, कोई मसला नहीं। Okay, so Assalamu alaikum everyone. My name is Zainab Izhar and I'm inducted into PwC. And first of all, I'm very glad to be part of this session and will be sharing my experience that of how I got into PwC and what I have learned from my entire induction process. So, हम test के basically session में we are discussing about test preparations. So the main thing you should prepare for is like aptitude questions prepare करने चाहिए, general knowledge questions prepare करने चाहिए, and basically इस time पे आपको KPMG के test के लिए prepare करना चाहिए क्योंकि PwC, BDO, GT they all are conducting their test after your results. तो अभी basic focus अगर हम KPMG test पे रखें तो that's better. और कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी देखे थे जो ऑडिट प्रोसीजर्स वाले आ रहे हैं दैट आर रेलेवेंट फॉर द इंटरव्यूज बट फॉर टेस्ट आई थिंक के कैफ रिलेटेड क्वेश्चंस ना पीडब्ल्यूसी पूछता है ना केपीएमजी के जो अभी डिस्कशंस हो चुकी हैं प्रीवियस स्टूडेंट्स ने भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जो केपीएमजी का टेस्ट था वो आई थिंक थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था बिकॉज जी जी बोलिए बोलिए। जी क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक प्रीवियसली जो कराची के टेस्ट होते उसमें एसेस टेस्ट नहीं होते थे एंड हमें यही था कि एसेस नहीं आएंगे फिर भी वी प्रिपेयर्ड लाइक करंट इश्यूज पे हमने कुछ प्रिपरेशन की थी फॉर टेस्ट बट व्हेन वी वेंट इनटू द टेस्ट वो वहाँ पे रिपोर्ट थी एंड आर्ग्यूमेंट वाज डूएबल इजी था हो गया था बहुत टफ नहीं था बट द रिपोर्ट देयर वाज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि रिपोर्ट का आपने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है there was a little difficulty because report नहीं रिवाइज किया हुआ था. जैनब अब देखो मैंने ये शेयर किया है तुम्हारी जो वो है, तुम बोलती रहो और फिर उसको हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपकी जैनब ने पावर पॉइंट स्लाइड बनाई थी बेटा फॉर योर इन ऑर्डर टू गाइड यू ऑल। गो ऑन बेटा गो ऑन। ओके अच्छा तो मैंने सबसे पहले बिकॉज एट माय इंडक्शन टाइम मैं बड़ा कंफ्यूज थी कि कैफ एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद आपने इमीडिएटली क्या करना है टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है या कैफ रिवाइज करना है तो एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था तो आई मीड दी स्लाइड्स कि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि कैफ एग्जाम्स खत्म होते ही आपने क्या करना है तो the first thing is prepare your CV because the first step for your induction is to apply into the firms or industry wherever you are interested. तो उसके लिए आपको CV बनानी है and your CV should be very good because it's going to be your first impression. I didn't remember कि KPMG के लिए CV required थी या नहीं because Safa has shared that CV wasn't required तो maybe नहीं required थी but all भी in firms जो हैं अपनी रिक्वायर्ड होती है तो सीवी प्रिपेयर करें एंड सीवी चेक ज़रूर करवाएं बिकॉज हमें लग रहा था कि हमने अच्छी सीवी बनाई है बट देयर आर सम इश्यूज और सम लैकिंग्स जो आप मिस साइमा से डिस्कस कर सकते हैं शी विल बी गाइडिंग यू वो आपको बता देंगी कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ऑल्सो जो भी आप अपनी सीवी में लिख रहे हैं यू शुड हैव अ गुड ग्रिप ऑन दैट क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सीवी अगर पूछता है तो यू शुड बी एबल टू टॉक ऑन इट and then some of my friends are going for inductions this time so they were asking me कि हमें courses करने चाहिए या नहीं करने चाहिए so I think it's a good decision to do courses also अच्छा मैंने Power Query and Power BI के courses किए थे अच्छा ये भी एक क्यूरी थी कि पावर बीआई जो है एचओसी में हम भी पढ़ते हैं सीफैप में व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर सीफैप पेपर्स उससे पहले एचओसी करना होता है एंड इन विच पावर बीआई कोर्सेज इंक्लूडेड तो ये हम अभी भी करें इंडक्शन के लिए एंड देन अगेन दोबारा करें तो इफ यू आर नॉट लाइक फीलिंग कि हमें ये वाले कोर्सेज करना चाहिए तो यू कैन डू अदर कोर्सेज एज वेल लाइक फॉर कम्युनिकेशन बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की फॉर योर इंटरव्यूज बिकॉज ड्यूरिंग माई इंटरव्यू व्हाट आई ऑब्जर्व के उनको आपके कैफ से कि आपके कैफ पे कितनी ग्रिप है दे वर नॉट कंसर्न अबाउट दैट व्हाट दे वर जजिंग they were testing your ability to handle pressure to reply in a situation वो आपको different situations दे जिसमें आपको reply करना था तो इसलिए I think you should work on your communication and also one of my friend told me that कि during interview she started speaking in Urdu so the director she was a lady she told her
to continue the English as she has to test her communication skills. So I advise कि थोड़ा सा इंग्लिश पे ग्रिप रखनी है बिकॉज एट दैट टाइम इतनी नर्वसनेस भी होती है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो बट यू शुड प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक इंग्लिश में थोड़ी सी फ्लुएंसी आ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू टॉक in front of the partner or director who is taking your interview. अच्छा सेकेंड रिवाइज कैफ अच्छा ये मैंने इसलिए यहाँ लिखा था कि एक वो स्ट्रेस चला था कि कैफ भी रिवाइज करना उसके क्वेश्चंस हैं तो कैफ आपने रिवाइज करना है फॉर द टेस्ट ऑफ जीटी एंड और आई थिंक यूनिलेवर का टेस्ट जो हुआ था उसमें भी कैफ रिलेटेड क्वेश्चंस थे जीटी में काफ़ी कैफ रिलेटेड क्वेश्चंस थे अदर देन दिस केपीएमजी एंड पीडब्ल्यूसी में कोई भी क्वेश्चंस कैफ रिलेटेड नहीं थे पीडब्ल्यूसी में थे वो ऑडिट से रिलेटेड थे या मे बी थोड़े से एमएफए से रिलेटेड थे तो उसके लिए आपने रिवाइज कर लेना है बट वो रिजल्ट के बाद ही होगा आपका टेस्ट सो राइट नाउ आप अगर अपने एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पे फोकस करें एंड अपने जीके पे एंड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस जो भी आ रहे होते हैं मिस आप प्लीज इसको स्क्रॉल अप करेंगी जी जी अच्छा तो एक तो ये कि इंडक्शन ओपनिंग का हमें कैसे पता चलेगा मैं भी अपने टाइम पे कंफ्यूज होती थी बिकॉज आई वाज फॉलोइंग सम पर्टिकुलर ग्रुप्स एक तो सीए प्रोफेशनल तो आई थिंक दैट्स इनफ कि आप उसको फॉलो करो उसके रिगार्डिंग आप देखते जाओ कि कौन सी फॉर्म इंडक्शन ओपन करिए उस पर आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड दैट्स इनफ उसके अलावा स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ हम मिस आउट कर रहे हैं वहाँ पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दूसरा आप लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो लाइक डिफरेंट पार्टनर्स पीडब्ल्यूसी को फॉलो कर लो सलमान सैन को आप फॉलो कर लीजिए एंड ऑफिशियल वेबसाइट इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया बिकॉज जो पीडब्ल्यूसी का टेस्ट होता है उसका फॉर्म आपने सबमिट करना होता है थ्रू देयर वेबसाइट और उस पर आपने अकाउंट बनाना होता है तो आई प्रेफर कि आप अभी से अकाउंट बना लो या रिजल्ट आ जाए तो आप एक अकाउंट क्रिएट कर लो बिकॉज जब पीडब्ल्यूसी इंडक्शन ओपन करता है तो वो सिर्फ 1 डे आपको मिलता है कि आपने उसका फॉर्म सबमिट करना है एंड आई थिंक उस वक्त बड़ा जल्दी में चीज़ें इशू क्रिएट कर देती हैं और उनकी वेबसाइट में भी कुछ इशू हो रहा होता है तो आप पहले से अकाउंट बना लें आप वेबसाइट विजिट करते हैं दैट विल बी हेल्पफुल अच्छा हाउ टू अप्लाई में ऑनलाइन एप्लीकेशन तो ये है कि बिग 4 के लिए आप वेट करें जब अपनी इंडक्शंस वो अनाउंस करेंगे तभी आपको उनके फॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपने वो फॉर्म्स फिल करने हैं अच्छा पीडब्ल्यूसी के फॉर्म में एक चीज़ होती है कि वो रेफरेंस आपसे मांगते हैं तो ये हमें नहीं पता था वंस वी वर एट दैट स्टेज कि हमें फॉर्म फिल करना था देन वी गॉट टू नो कि अब रेफरेंस चाहिए दो रेफरेंस चाहिए होते हैं आपको तो आई रिकमेंड कि आप अभी से अपने किसी टीचर से या जिससे भी जिसका भी आपको रेफरेंस देना है उससे आप कांटेक्ट कीजिए और रेफरेंस ले लीजिए तो ये होगा कि आप उस टाइम पे इजीली रेफरेंस डाल सकते हैं ईमेलिंग सीवीज जितनी भी फर्म्स हैं मैंने ये किया था कि सजेस्ट किया गया था कि आप आई कैप के पोर्टल पे आपको इंडक्शंस का बताया जा रहा था कि कौन सी फर्म्स में इंडक्शंस हो रही हैं तो उन सब में आप अपनी सीवीज भेज सकते हो विद अ कवर लेटर आपने टाइप करना है रेफरेंस ना मैंने ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर्स आपको डिनाई तो नहीं करेंगे मैंने जो रेफरेंस यूज़ किया था वो सर माजिद और सर रिजवान का यूज़ किया था आई टेक्सटेड दैम बोथ और उन्होंने मुझे इमीडिएटली रिप्लाई किया था कि हाँ बेटा आप यूज़ कर लो रेफरेंस तो आई थिंक सर माजिद अवेलेबल नहीं है सर रिजवान नहीं है सर तबानी से आप पूछ सकते हो और भी बहुत सारी फैकल्टी तो आप इजीली रेफरेंस मिल सकता है आपको अच्छा रेफरेंस टीचर्स के अलावा अपने रिलेटिव से भी आप ले सकते हो अगर आपको लगता है कोई रेलेवेंट बंदा है तो आप उससे भी ले सकते हो अच्छा देन फिजिकली सबमिटिंग सीवीज फिजिकली आई डोंट प्रेफर क्योंकि बिग फोर में तो फ़ायदा नहीं है दे विल डिनाई यू अब आपको गेट पे मना कर देते हैं कि नहीं फिजिकली हम एक्सेप्ट नहीं करते ऑनलाइन ही होता है फिजिकली इज़ गुड फॉर जीटी बिकॉज जीटी का आई डोंट नो उन्होंने प्रॉपर एक प्रोसेस किया था अनाउंसमेंट आई थिंक नहीं की थी बट जो लोग फिजिकली वहाँ सबमिट करवा रहे थे सीवीज उनको रिस्पॉन्स आया था वो टेस्ट के लिए उनको बुलाया था एंड देन इंटरव्यूज कंडक्ट हुए थे और इस तरह इंडक्शन हुई थी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही रेफरेंस यूज़ करना है या नहीं बट आई थिंक इट्स इजी वे कि आपने टीचर्स का रेफरेंस ले लो आई थिंक मिस इस पे आपको अच्छा गाइड जी कर जी जी बिल्कुल टीचर्स का देना चाहिए और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर्स का देना चाहिए जी अच्छा क्लाइंट रेफरेंस वर्क एज वेल आई थिंक टीचर्स का सही है रेफरेंस आई थिंक टीचर्स का ही आप लोग दे दो तो दैट्स बेटर बाकी जो अगर आप लोग उस रेफरेंस की बात कर रहे हो कि जो एक सोर्स वाला सिस्टम है तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट
अच्छा, इसके बाद टेस्ट प्रिपरेशन पे टेस्ट मटेरियल्स या टेस्ट सिलेबस की टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसके लिए आपने प्रिपेयर करना है। तो एक तो मिस सैमा आपको काफ़ी सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगी, एंड सेकेंडली जो सर सबूर के ग्रुप्स हैं उस पर बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके इजीली आप देख सकते हो कि पीडब्ल्यूसी के लिए तो बहुत अच्छी गाइडलाइन उन्होंने दी हुई है कि इस तरह के क्वेश्चंस टेस्ट होते हैं, बुलेट्स बना के दिया हुआ है कि आपने ये टॉपिक्स जो है रिवाइज कर लेने हैं। देन उसके बाद इंडिया बिक्स इज़ अ वेबसाइट, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। मैंने मेनली उसी से प्रिपरेशन की थी एक्सेप्ट फॉर जीके, बिकॉज जो पाकिस्तान रिलेटेड जनरल नॉलेज थी वो उस पर अवेलेबल नहीं थी। तो उसके लिए मिस सैमा ने जो लिंक्स शेयर किए थे वो, और कुछ लिंक्स जो सबूर भाई के उस पर थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो यूज़ किए थे। अच्छा, इसमें ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप स्टूडेंट फीडबैक यूज़ करो। आप लोग देखो प्रीवियसली क्या क्या टेस्ट हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स टेस्ट हुए हैं, सो यू कैन प्रिपेयर दोज। अच्छा, एमसीक्यूज ही होते हैं उस पर, तो इट्स ईजी कि आपके टेस्ट में भी एमसीक्यूज आने हैं, तो आप एमसीक्यूज से प्रिपरेशन करो। मैंने इंडिया बिक्स से किया था, एंड मिस साइमा ने कुछ पीडीएफ शेयर किए थे फॉर एसेस, वो टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे, एंड दैट्स इट। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि टेस्ट किस टाइप का होता है। पीडब्ल्यूसी का टेस्ट वाज कंपैरेटिवली इजियर देन केपीएमजी बिकॉज वो एमसीक्यूज बेस्ड ही था। उसमें एक तो आपके थोड़ा सा कैलकुलेटेड पार्ट टेस्ट होता है, दैट वाज वेरी इजी। अगर आपने मतलब कैफ क्वालिफाई किया है तो इट मीन्स इतनी नॉलेज थी कि वो इजीली डुएबल था। उसके लिए मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था, बिकॉज वो आई थिंक 1 डे बिफोर हमें पता चला था, जब लाहौर में टेस्ट कंडक्ट हुआ था आई थिंक, तब हमें पता चला था कि द पीडब्ल्यूसी इज टेस्टिंग, आर वी अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते। हाँ, पीडब्ल्यूसी टेस्ट में एक सिस्टम का कैलकुलेटर होता है, बट वो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेटर होता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो पीडब्ल्यूसी में एक ये कैफ का एक सेक्शन था, देन उसके बाद एक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे, मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे, जैसे कि अच्छा एक एज वाले क्वेश्चन जैसे हम पीआरसी में बहुत पढ़े होंगे, क्यूटी में जो फादर की एज जितनी है, सन की एज जितनी है, इस तरह के क्वेश्चंस थे। दूसरा हमारे डिस्टेंस, टाइम, हाइट, इस तरह के क्वेश्चंस थे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो आप अपनी टाइम लिमिट सेट करना, बिकॉज उसमें आपको अगर एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट दिए तो यू हैव टू डू दैट एमसीक्यू इन 1 मिनट, वरना आपके जो अदर एमसीक्यूज हैं वो रह जाएंगे। और मेरे साथ ये हुआ था, बिकॉज प्रैक्टिस तो मैंने बहुत की थी। जो हमारा आईक्यू पोर्शन होता है और मिसिंग नंबर्स, इस तरह के क्वेश्चन उसमें होते हैं, वो डुएबल थे, इंटरेस्टिंग थे, मुझे आ भी रहे थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम कुछ एमसीक्यू से जो मुझसे रह गए थे, बस मैंने एंड में टिक कर दिए थे, जो मुझे रिग्रेट हुआ था कि जस्ट बिकॉज ऑफ के टाइम कम था, मुझसे नहीं हुआ। तो जब आप प्रैक्टिस करो तो आपने ज़रूर इस चीज़ को देखना है कि आप विद इन अ मिनट एक एमसीक्यू सॉल्व कर लो। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि टाइम लिमिट सेट होता है कि जैसे कि अगर आपको जीके के 15 क्वेश्चंस दिए हैं, तो 1 मिनट है एक एमसीक्यू के लिए, तो आपको 15 मिनट्स का आपके पास टाइमर हो गया, यू हैव टू डू दैट जीके पोर्शन इन 15 मिनट्स। 15 मिनट से पहले होता है यू नॉट अलाउड टू स्विच टू अदर सेक्शन, आपने वेट करना है या आपने सबमिट कर देना। देन द अदर टाइमर विल बी स्टार्ट फॉर द एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, वो आई गेस आई फॉरगॉट 15 थे 20 थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, 1 मिनट फॉर ईच एमसीक्यू। देन अगेन एक न्यू टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, एंड आपने उसी ड्यूरेशन में वो वाला पार्ट कंप्लीट करना है। देन द अदर पार्ट वाज ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो क्वेश्चंस भी काफ़ी ईजी थे, ईजी इन अ सेंस कि वो आपको सिनेरियोज गिवन थे कि इस सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए, बेस्ट एक्शन क्या होगा। थोड़े से एथिक्स रिलेटेड भी थे, एंड उसके लिए भी मिस सामा का पीडीएफ आई विल रिकमेंड। उन्होंने एक पीडीएफ दिया था डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस का, दैट वाज वेरी गुड। वो आप प्रैक्टिस करो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस डिसीजन मेकिंग के सेक्शन में आएंगे। बाकी आई थिंक पीडब्ल्यूसी का टेस्ट ओवरऑल इजी था और अच्छा था, बट केपीएमजी में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी। अच्छा, अब बाकी मैंने सिर्फ टेस्ट इन्हीं दो के दिए थे। अच्छा, यूनिलेवर का टेस्ट दिया था, उस पर थोड़ी डिस्कशन ये कर लेती हूँ कि उसमें क्या रिलेटेड क्वेश्चंस थे, बट जब टेस्ट वो ऑनलाइन था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट कर लिया था, तो उस पर यही फीडबैक आया था कि जो प्रीवियस फीडबैक था, जो प्रीवियस क्वेश्चंस टेस्ट हुए थे, वही अगेन टेस्ट हो रहे थे। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं सिर्फ। पीडब्ल्यूसी सिर्फ एमसीक्यूज ही पूछ रहा था। केपीएमजी का एक सेक्शन अलग से होता है जिसमें एसेज या रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट हमारे टाइम पे पूछा था, एंड नो आइडिया क्या वो किस बेसिस पे क्या टेस्ट करेंगे।
अच्छा, जो मुझे एक चीज़ लगती है कि ना KPMG ने कोई गाइडलाइन नहीं दी हुई कि दे आर आस्किंग MCQs अबाउट दिस टॉपिक, या वो इतने MCQs पूछेंगे एंड दिस विल बी ऐसे आएगा या रिपोर्ट आएगी, तो वो चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है. एंड ऑल्सो MCQs थे आई थिंक 25 to 30 and the total marks were 100 and like 70 or 60 marks का आपका से वो ऐसे पोर्शन होता है जो रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट था, वो ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का था. तो ये कि सारे मार्क्स तो मोस्ट जो मार्क्स से ज़्यादातर वो सीखे थे. अच्छा, एंड देन हाँ, यूनिलीवर का मैं ये बता रही थी कि यूनिलीवर का टेस्ट वही एग्जैक्ट MCQs कॉपी हुए थे. जब मैंने टेस्ट किया था तो वो 1 या 2 ही MCQs चेंज थे. आई एम नॉट श्योर कि इस बार यूनिलीवर किस टाइम पे अपनी इंडक्शन ओपन करता है. यार आई हैव नो आइडिया अबाउट इट बिकॉज इससे पहले तो मैंने कभी यूनिलीवर की इंडक्शन का नहीं देखा था. हो सकता है इस बार भी अगर इंडक्शन ओपन करे तो यू शुड ट्राई. अच्छा, एक और चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को ये होगा कि फर्म या इंडस्ट्री. सो द बेसिक आंसर इज जो भी मिल रहा है फर्म या इंडस्ट्री, जिस भी कैटेगरी की फर्म मिल रही है आप लोग चले जाओ. अच्छा हाँ, कोई ये भी होता है कि हमने फर्स्ट टाइम में कैफ क्लियर किया एंड हम इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं या बिग फोर छोड़ दें. ट्रेनिंग से पूछा था, उन्होंने बताया था कि साल में सिर्फ एक बार करते हैं. हाँ, तो ऐसा ही होगा, साल में सिर्फ एक बार करते होंगे. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. अच्छा, तो अगर कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि इंडस्ट्री में जाना है या फर्म में, तो इंडस्ट्री में इन लोगों का ये होता है कि एक्सपोजर बहुत कम है. अब जो फर्म्स स्पेशली बिग फोर, स्पेशली PwC इज़ नॉट हायरिंग यू फॉर द एक्सटर्नल ऑडिट. ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो इंडक्ट हो रहा है वो एक्सटर्नल ऑडिट में जा रहे हैं. देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और आपको जब इंडक्ट किया जाएगा तो यू विल बी इन्फॉर्म कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेल आती है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर एडवाइजरी, तो उस पर मैंशन होगा कि आपने इंटायर पीरियड ऑफ योर आर्टिकल 3.5 ईयर्स जो है आपने स्पेंड करने अपनी एडवाइजरी डिपार्टमेंट में ही. यू आर नॉट अलाउड टू स्विच, या रोटेशन कुछ भी नहीं होगा. At my time, मेरे interview थे जुनैद मीसिया, so he cleared it कि if you are inducted into a particular department, for example tax, advisory, even there is a department of sustainability जो अभी newly start हुआ है, उसमें भी आपकी inductions हुई हैं. And he made it very clear, if you are inducted in a particular department तो आप इस पर argue नहीं कर सकते, आपको वहीं अपना 3.5 years का जो period है वो spend करना होगा. ये तो अगर ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है. देखो, कैटेगरी बी, इफ़ यू आर लाइक कि अगर आपने अभी लेटेस्ट आपका FTS है तो आई प्रेफर कि कैटेगरी ए देखो, और नहीं मिल रही है तो आई थिंक इंडस्ट्री भी देख सकते हो आप. बट स्टिल इफ यू आर ओके विद कैटेगरी बी तो ठीक है. ऑडिट डिपार्टमेंट को इतना आपने प्रेफरेंस नहीं देनी है बिकॉज फर्म्स आर स्विचिंग फ्रॉम ऑडिट टू अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल. दे आर ट्राइंग कि वो अपने स्टूडेंट्स को दूसरे डिपार्टमेंट्स में इंडक्ट करें और उस पर भी वर्क करें. बिकॉज एक लिमिटेशंस भी तो आ जाती हैं कि अगर आप एक फर्म फॉर एग्जांपल PwC किसी क्लाइंट को ऑडिट सर्विसेज दे, तो PwC इज नॉट अलाउड टू गिव अदर सर्विसेज. कितना लेटेस्ट होना चाहिए ये तो डिपेंड करता है. जैसे कि PwC ने एट माई टाइम मेरा FTS 42 था एंड PwC की जो इंडक्शन रिक्वायरमेंट थी वो थी 40 FTS 40 होना चाहिए था. मैंने अपना कैफ जो है 3 अटेम्प्ट्स में पास किया था, तो मेरा 42 था. मे बी 43 वाले भी कुछ होंगे जिन्होंने 2 अटेम्प्ट्स में पास किया होगा. तो आप देख सकते हो कि एक तो ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि बिग फोर जो है आपके FTS पे एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, तो उससे भी आपका आइडिया हो जाएगा. दूसरा भी अभी तो कैटेगरी, अच्छा अगर आपका इंटरव्यू हुआ है अभी तो आई थिंक यू शुड वेट कि रिजल्ट का आप वेट करें. रिजल्ट के बाद और फर्म्स आ जाएंगी जो अपनी इंडक्शन ओपन करेंगी, तो आई थिंक यू विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी. तो कैटेगरी ए के लिए आप वेट कर सकते हो. बट स्पेसिफिकली अगर आप मुझे आपने एक्स्ट्रा कौन से कोर्सेज किए थे, मैंने पावर BI एंड पावर क्यूरी किया था. उसके अलावा एक्सेल भी मैंने स्टार्ट किया था, बट क्योंकि मैं टेस्ट प्रिपरेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी तो मैंने नहीं किया था. वो छोड़ दिया था मैंने. अच्छा, बाकी हाँ, ऑडिट डिपार्टमेंट का मैंने ये कहा था कि आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट इस चीज़ को छोड़ दो कि एक्सपोजर कम है कुछ है, क्योंकि अगर इन द केस कि आपको PwC से ऑफर आती है एंड यू आर इंडक्टेड इनटू अ सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट, वहाँ पे अभी तक क्लाइंट्स असाइन नहीं हुए. मेरे साथ जो मेरे बैचमेट्स थे तो उनको ये कहा गया था कि अभी ये डिपार्टमेंट नहीं हुआ है तो हमें टाइम लगेगा टू डेवलप दिस डिपार्टमेंट. तो आई थिंक अब जाके शायद क्लाइंट्स असाइन होना शुरू हो गए होंगे.
तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि यार एक्सपोजर कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हो एंड आई थिंक इट्स बेटर ऑप्शन, क्योंकि इंडस्ट्री में एक तो आपको टाइमिंग इश्यूज नहीं होंगे, दूसरा आपको पैकेज अच्छा मिल रहा होगा, आपको 2 days ऑफ मिल रहा होगा, टाइम भी आप ऑफ मिल जाएगा, ओवर टाइम नहीं होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका आप देख सकते हो। एंड एक सबसे बड़ा एक फैक्ट ये भी है कि जो बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब पीडब्ल्यूसी ने एट माय टाइम दे इंडक्टेड 90 लाइक 89 और 90 स्टूडेंट्स, ठीक है। और वो सिर्फ सीए नहीं थे, एसीसीए, लम्स, आईबीएस, सबके स्टूडेंट्स जितने भी इन्होंने इंडक्शंस करनी थी वो ऑल टुगेदर वो 89 to 90 स्टूडेंट्स उन्होंने इंडक्ट किए थे। तो अब आप सोच लो कि उस ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर एक को बिग 4 मिल जाए। आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत कॉम्पिटेंट होंगे, मे बी मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे, बट उनको नहीं मिली बिग 4। इट्स ओके, आप अपना टाइम वेस्ट ना करो, कहीं और भी जाओ, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड हो सकता है आर्टिकल्स कंप्लीट होने के बाद पीडब्ल्यूसी में कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो इसलिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। इफ़ यू आर गेटिंग एनी फर्म, कोई सी भी फर्म मिल रही है, कोई सी भी इंडस्ट्री मिल रही है, गो फॉर इट। कोई भी डिपार्टमेंट मिले, यार अगर आपको पीडब्ल्यूसी में कोई भी डिपार्टमेंट मिल रहा है तो आई थिंक चले जाना चाहिए, फाइन। या केपीएमजी में कोई भी डिपार्टमेंट मिला तो आई थिंक इट्स ओके। इंस्टेड ऑफ वेटिंग आपने ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप वेट करते रहो और आपको किसी और, फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये हुआ था कि आई रिसीव द ऑफर फ्रॉम पीडब्ल्यूसी फॉर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, एंड देन मेरा मुझे ये था कि अभी मैंने उसमें यूसुफ में भी दिया हुआ था, तो मुझे था कि हो सकता है वहाँ से भी कॉल आ जाए एक्सटर्नल की। बट देन आई आस्क्ड माई टीचर्स एंड पर्सनली मुझे जाना था पीडब्ल्यूसी में ही। एक वो एक सबकी परसेप्शन होती है ना बिग 4 वाली, तो वो चीज़ मेरे अंदर भी थी। तो देन आई डिसाइडेड कि पीडब्ल्यूसी ही चूज़ करते हैं। बट इन केस अब जैसे कि अभी अ पर्सन वाज टॉकिंग अबाउट यूसुफ अदर, मे बी एहसन, कि उनका भी एडवाइजरी में हुआ आई थिंक। तो इफ़ आई रिसीव्ड ऑफर फॉर एडवाइजरी इन पीडब्ल्यूसी एंड एडवाइजरी इन यूसुफ अदर, सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग फॉर पीडब्ल्यूसी। तो इसलिए इस तरह के डिसीजंस बड़े आपको सोच के लेने पड़ेंगे कि व्हाट यू हैव टू डू। डिपार्टमेंट बाद में चेंज होता है। अच्छा, पीडब्ल्यूसी की पॉलिसी ये थी कि रोटेशन होती थी। स्टिल मेरे साथ जो मेरी टीम मेंबर्स हैं वो रोटेट होकर आए विद अदर डिपार्टमेंट से। बट एज आई टोल्ड यू कि इंटरव्यू में ही मुझे पार्टनर ने क्लियर कर दिया था कि अब रोटेशन नहीं होगी। आई थिंक आई कैप ने पॉलिसी चेंज की, तो दैट्स व्हाई पीडब्ल्यूसी हैज चेंज द पॉलिसी कि अब रोटेशन नहीं होगी। तो अगर आपको एक डिपार्टमेंट के लिए आती है ऑफर, तो आप माइंड बना लो कि हैव टू स्पेंड योर एंटायर आर्टिकलशिप पीरियड इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, मैंने अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन पे इसलिए बात नहीं की बिकॉज मिस टोल्ड मी कि शी इज़ गोइंग टू अरेंज अनदर सेशन फॉर दैट, सो आई Yes. थिंक इंटरव्यूज की उसमें डिस्कशन करेंगे। जी मेरा बेटा। यस, टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, या अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है, अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप मुझे नहीं रिमाइंड नहीं मेरा बेटा ज़ैनब, यू आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। आपने बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। And I believe that all my three participants who have come in, taken out time, have done wonders. They've done a lot of, they've added value to this session. I'm very thankful to you. And let's see how these students are able to, handle the pressure and everything. I'm sure कि बच्चों को समझ आया होगा कि क्या क्या कर सकते हैं। मुझे ये जो इंडस्ट्री वाली बात है ना बेटा, मेरे हिसाब से अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लो, तो अगर आपको मोबिलिटी का इशू नहीं है, इफ यू नॉट प्लानिंग टू लीव पाकिस्तान, then industry is a very good option because the grooming is going to be massive, and अच्छी अगर इंडस्ट्री में आप चले गए तो आपको बहुत अच्छी ग्रूमिंग मिलेगी, बहुत अच्छी एक्सपोजर भी मिलेगा। बट बस वही है कि आप हर इंडस्ट्री आपको बाहर नहीं भेजेगी, और आपकी जो फर्म्स हैं बिग 3 जो हैं उसमें अपॉर्चुनिटी आपको बाहर जाने की मिलती है, और वो भी किस्मत की बात है कि सबको नहीं मिलती, लेकिन बहरहाल अपॉर्चुनिटी ज़रूर होती है, तो वो बच्चा इसलिए उसमें ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। अभी बच्चे को थोड़ा सा ओपन माइंडेडली देखना है सारे स्कोप को, क्या अपॉर्चुनिटीज उसकी तरफ आ रही हैं और वो उनको कैसे अवेल करेगा। ठीक है Okay, Miss, बेटा। thank you so much for inviting me in this session, and also thank you for guiding the students throughout their journey, and also you have played a very huge part in my induction, so thanks a lot. Thank you so much. जज़ाकल्लाह मेरा बेटा फॉर योर काइंड वर्ड्स। ज़ैनब मेरा बेटा खुश रहिए, एंड Thank you. थैंक यू सो मच।
जी मेरा बेटा, ये जो हिरान एक सवाल पूछा है, आप जो कह रहे हो ना कि डिपार्टमेंट बाद में चेंज होंगे, तो बेटा ये इसकी पहले कमिटमेंट होती थी कि रोटेशन होगी। अब ये आईकैप की पॉलिसी चेंज है, इसलिए नहीं है। लेकिन एक अच्छी फर्म में जाने से, और बेटा आगे क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं, 3 years अ बिग टाइम, ठीक है। हो सकता है पॉलिसीज में भी चेंज आए, हो सकता है इंटरनली उनको लगे कि उन्हें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए। सो अगेन वो भी ऑप्शन है, अच्छी फर्म में मिल रहा है, और आपकी चाहत के मुताबिक कोई ऐसी उसमें नहीं मिल रहा। अगर इंटरनल ऑडिट में मिल रहा है, आप एक्सटर्नल में जाना चाह रहे थे, तो मैंने जैनब भी जब मेरे पास आई थी तो मैंने उससे कहा था बेटा गो फॉर इट, आपको अच्छी फर्म में मिल रहा है, प्लीज गो फॉर इट, एंड देन यू विल क्रिएट योर ओन पाथ एंड यू विल क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज। वो सब हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि ओपन माइंडेड रहो, बहुत ज्यादा अपने लिए मुश्किल नहीं करो, ये कहकर, ठीक है। जी साजिद, thank you for saying thank you, and let's just end this particular session. इंशाल्लाह एक आप जो सेशन रखेंगे उसमें स्पेसिफिकली हम इंटरव्यू के लिए कौन से क्वेश्चन का क्या जवाब देना है, मैंने उसके लिए भी चीजें बेटा बड़ी प्रिपेयर की हुई हैं। मतलब वही है मसला हमारा कि टाइम का भी फैक्टर था। आज मैं चाह रही थी जरा हम इंटरव्यूज के उसके बारे में बात कर लें, लेटर्स के बारे में, और आपके टेस्ट के बारे में। तुम लोग टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू करो, मैं कुछ चीजें तुम्हारे उस पर सेंड कर रही हूँ। अपना सब लोग ख्याल रखो, ठीक है। जो सवाल पूछना है अब आप मुझसे ग्रुप में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा।